Good afternoon, everyone. We are here to discuss the IR section of GS2, and the Institute has provided you with the X Factor notes. I found them to be very concise, precise, and to the point. And if you're covering IR, I don't think you need to go beyond this because it has almost everything and anything that you need for IR. So I have went through this entire PDF and I have marked and highlighted the things that I found relevant and to be used as it is verbatim in the paper. So they have divided this in foreign policy, global powers, neighborhood, regional relations, multilateral institutions, regional organizations, policies and diplomacy, and miscellaneous sections. There are few topics in miscellaneous which are very important, I believe, because they have been asked in the 2025 paper also. And there's a high chance that something on the similar lines might again be asked in 2026 paper. So we'll discuss that also. We'll give some importance there also, 2-3 topics there. And then obviously global powers, China, US, Russia, etc. Neighborhood, regional relations, multilateral institutions, regional organizations becomes important because we have the BRICS presidency, the BIMSTEC summits, all those happening in recent times. International policies and diplomacy is something that I have found very interesting here because they have discussed these policies in detail, highlighting their key features and again discussing the important points there. So we'll go all of this one by one. But one thing that I'll say that we'll move fast because you don't need to recognize, remember, and recollect everything that is present here. You just need to pick out the points that you need that you will be able to use directly in your examination in the paper. Okay, so if you want to use this PDF, highlight it, or if you want to make your own short notes out of it, you do that. Either way, it's fine. The first topic, the first chapter is obviously India's foreign policy. Basic definition of foreign policy: set of self-interest strategies to safeguard national interests and achieve goals within international relations. Determinants of foreign policy. This has some overlap with, I believe, PSI are optional, but overall you have a good overview here. Geography, history, economy, energy, strategic culture, political leadership, domestic politics, global power structure, and military capability. All those are determinants of Indian foreign policy. Principles of Indian foreign policy becomes very crucial because आप इनको directly use कर सकते हो in your answers, or you can use them when you are defending India's stand in this strategically autonomous foreign policy that we are pursuing. And if you have to see through it or you have to defend it in the face of global criticism or in any sort of such question, you can use these philosophies as it is. Panchsheel, everyone knows it. Strategic autonomy and evolution over non-alignment. Vasudhaiv Kutumbakam, the motto for G20. Neighborhood first policy, India's strong emphasis on this. Non-alignment 2.0. Strategic multi-alignment, now we are calling it. Anti-terrorism, very strong stand. Multilateralism, soft power, nuclear responsibility. This is important because India is a very responsible nuclear power and we have been trying to achieve more integration in the nuclear world, nuclear market. Major achievements of Indian foreign policy: G20 presidency, successful summit, permanent membership push for UNSC, vaccine diplomacy, vaccine Maitri initiatives that India undertook, and India supplied vaccines to a lot of countries around the world. Civil nuclear deal 2008, a key summit, key peak of India's diplomacy, I'll say. This diaspora evacuations, India have undertook numerous operations, Operation Ganga, Operation Kaveri, etc., from West Asia, from North Asia, from different countries also, turbulent regions also, and India is even able to pull through a safe corridor, if I may say, a green corridor, a strategic pause on the fighting, just to evacuate our nationals. And not just our nationals, India has also been successful in taking out or bringing back nationals from our neighborhood countries also, and that has earned India a lot of respect in the neighborhood in the Asia. ISA leadership, International Solar Alliance, first responder in the Indian Ocean, that is the maritime leadership. It also enhances India's image as the first responder. Strategic ties, elevated relations with West Asian powers. This is a major strategic shift since 2014, where we are able to align on various issues with the West Asian powers. That is a major diplomatic win. Boundary settlements, we have done land boundary agreement with Bangladesh and etc. Global South-wise, India emerging as the voice of the global South or the leader of the global South. Major challenges, China's assertiveness. In all these spheres, आप जहाँ भी discuss करोगे, bilateral relations में, multilateral institutions में, हमारे groupings में,
इंडिया का ग्लोबल फोरम है, हर जगह पर चाइना हैज emerged as a major competitor. So this point can be used anywhere in your answers. Two frontal threat on the west and the east border. Neighborhood volatility. Very good point, very emerging point, because we have seen unrest in Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Pakistan occupied Kashmir, and neighboring South Asian regions as well as Southeast Asian regions. Myanmar में भी ये चीज रही है. So this point becomes very valid. It's a major concern or a challenge for Indian foreign policy. Balancing great powers again. Trade protectionism. Rising global trade barriers and the stalling of WTO negotiations. Apart from that, these protectionist tendencies also include unilateral tariffs, sanctions, use of weaponization of trade. So all those things can be included here. Climate justice, the failure of different COP summits and etc. to provide the requisite amount of money or finance that is required, the technology transfer that is deficient. So all those things come here because India is an active speaker on the climate justice aspect. We have also given the net zero by 2070 वाला target. Energy vulnerability very crucial here. आप चाहो तो इसको शुरुआत वाले पॉइंट्स में भी डाल सकते हो because it becomes essential. We have seen the choking of Strait of Hormuz and all such regions, जिसकी वजह से भाई कितना इशू आया था. Maritime competition very 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 real in the Indian Ocean region, and the entire construct of Indo-Pacific is primarily based on this only. Free and open Indo-Pacific जो इंडिया का construct है उसमें बहुत important role है. Resource scarcity obviously इसमें तो पाकिस्तान के साथ भी है, नेपाल के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, और जो इसकी वजह से जितना इशू हो रहा है, ट्रांसबॉर्डरी वाटर डिस्प्यूट्स तो है ही, साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो रिसोर्स पे क्रंच चल रहा है उसके ऊपर जो कंपटीशन हो रहा है, दैट इज आल्सो अनदर डायमेंशन हियर. वे फॉरवर्ड, strategic hedging. This is what we have been doing. We have been trying to do. We need to do it further. Economic integration into global value chains. We are somewhere around 2% contributing to the global manufacturing supply chain. We need to increase it to at least 13, 14, 15%. So global value chain में integration very important. Revitalizing SAARC is to make South Asia वाला region more effective. Digital diplomacy, India's leadership in the digital public infrastructure and its ability to एक्सपोर्ट इट. जो हमने कोविन प्लेटफॉर्म शेयर किया, जो हमने यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट्स होते हैं उनको हमने शेयर किया, ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर डिजिटल डिप्लोमेसी. जो हमारा इंडिया स्टैक है उसको भी हम एज एन एग्जांपल यहाँ पोर्ट्रे कर सकते हैं. नेवल एक्सपेंशन, अगेन इंडिया का जो एक्सपेंडिंग होराइजन है इंडियन ओशियन. ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, एक्सपेंडिंग द इंडियन फॉरेन सर्विस. नाउ दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट हियर बिकॉज हमने एक चीज नोटिस की गई है, दिस हैज बीन हाईलाइटेड बाय मेनी एक्सपर्ट्स आल्सो, दैट इंडिया के जो डिप्लोमेटिक मिशन हैं दे आर अंडरस्टाफ्ड. दूसरी बात, जितने डिप्लोमेटिक मिशन होने चाहिए उतने नहीं हैं, एम्बेसीज नहीं है, तो वहां पर एक मेजर इशू आता है. एक्सपेंडिंग द इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इट्स स्टाफिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. पैरा डिप्लोमेसी वेरी वेरी क्रूशियल. आप पैरा डिप्लोमेसी में स्टेट लेवल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, पीपल टू पीपल ट्रैक 1.5 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की बात करते हैं, बट पैरा डिप्लोमेसी में मेनली आप इंडियन स्टेट्स को पार्टनर बनाते हैं. तो जैसे अगर आपको बांग्लादेश के साथ डील करना है तो वेस्ट बंगाल के साथ डील कीजिए, अगर आपको श्रीलंका के साथ डील करना है तो आप तमिलनाडु को ऑन बोर्ड लीजिए, अगर आपको लेट्स से नेपाल के साथ डील करना है तो आप उत्तर प्रदेश को ऑन बोर्ड लीजिए. तो साथ में जब, क्योंकि उनके बाउंड्री शेयरिंग है, कॉमन रिलेशन है, एथनिक रिलेशंस होते हैं, तो वहां पे आई बिलीव ये बहुत काम आता है. पैरा डिप्लोमेसी में आप बहुत अच्छे इफेक्टिवली पोर्ट्रे कर सकते हो अपने कंसर्न्स को. टेक्नोलॉजी अलायंसेस, I2U2, ट्रस्ट जो आईसेट बना था वो उसको ट्रस्ट बना दिया है, टेक्नोलॉजी अलायंसेस हो रहा है. साथ ही साथ फ्रांस के साथ हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं, जर्मनी के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं. सस्टेनेबल नेबरहुड, ऑब्वियसली वी नीड अ काम स्टेबल नेबरहुड. दिस इज चैप्टर 2. तो यहाँ पर हम फॉरेन पॉलिसी के बेसिक चैलेंजेस, बेसिक इनिशिएटिव्स, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, जो बेसिक टेनेट्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, वो सब हमने डिस्कस किया. नाउ दिस, अगर ये अपने आप में क्वेश्चन बन के आता है, वेल एंड गुड. अगर ये नहीं आता है तो आप जहां भी अपने पॉइंटर्स बना रहे हैं वहां पर आप इन पॉइंटर्स को एज इट इज यूज कर सकते हैं अपने आंसर में. लेट्स से आपने किसी पॉइंटर में किसी क्वेश्चन में लेट्स से यू आर एबल टू मेक 7 पॉइंट्स इन अ 10 मार्कर. अब आपको 3 पॉइंटर नहीं आ रहे तो आप इनमें से कोई एक पॉइंट उठा सकते हैं, 2 पॉइंट उठा सकते हैं, प्लस इनके साथ सब्सटेंशिएशन भी है. नाउ आई वुडंट रिकमेंड राइटिंग अ लॉट ऑफ थिंकर्स यहाँ पर, क्योंकि GS2 का आंसर है, बट अगर ये PSIR का है तो भी आप इसमें इन सारे थिंकर्स को यूज कर सकते हो. बट GS में थोड़ा बहुत चलता है, बहुत ज्यादा आप थिंकर्स नहीं लिखना. चैप्टर 2, इंडिया एंड ग्लोबल पावर्स, विल बी मूविंग अ लिटिल फास्ट बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पूरा रटने की कोई जरूरत नहीं है. आप इसमें से सिर्फ की टर्म्स उठाइए, की फैक्ट डेटा उठाइए और उसको अपने आंसर में यूज कीजिए, दैट्स इट. एंड वन थिंग अबाउट दिस PDF दैट आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग इज कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है. You don't need to go anywhere for IR section after this.
आप इसको एक बार ठीक से कर लीजिए, इसके पॉइंटर्स निकाल लीजिए एंड वेल एंड गुड। मेजर रिलेशंस में ग्लोबल पावर्स में सबसे पहले आता है इंडिया यूएस, गॉन थ्रू अ टर्बुलेंट टाइम, गॉन थ्रू अ टर्बुलेंट फेज, नाउ रिटर्निंग टू स्टेबिलिटी। इंडिया यूएस रिलेशन, इसमें आप दो इंट्रोडक्शन बना सकते हो। पहला तो ये वाला है कि our relationship with the US today is one of comfort with convergence, एस जयशंकर का स्टेटमेंट। दूसरा ये वाला बहुत अच्छा है सीराज अमोहन का, इंडिया एंड द यूएस आर मूविंग फ्रॉम अ हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री टू अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आप इंट्रोडक्शन में डालना चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन के तौर पर आप कोई रीसेंट डेटा वहां पर डाल सकते हैं, जैसे हमारी इंटरिम ट्रेड डील हुई थी या एक्सटेंशन ऑफ मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस टू इंडिया बाय यूएस। तो इन दोनों में से ऊपर से कोट या फिर इस फैक्ट में से कोई भी आप एक इंट्रो बना सकते हो। किसी भी बायलेटरल रिलेशन में, भले वो मेजर पावर के साथ हो, नेबरहुड रिलेशन में हो, देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट दैट यू हैव टू पुट इन। पहला तो कि भाई आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिख देना होता है, आप उनका पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है वो लिख दीजिए, इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड कितने का हो रहा है वो एग्जैक्ट डेटा आप डाल दीजिए, डिफेंस में उनका रिलेशन कैसा है अगर वहां पर है तो उसको आप डाल दीजिए, स्ट्रेटजिक रिलेशन कैसे हैं, जियो स्ट्रेटजिक जियो पोलिटिकल रिलेशन किस तरीके से बैठ रहे हैं स्ट्रेटजिक मैट्रिक्स में। एनर्जी डिप्लोमेसी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है, तो एनर्जी मैट्रिक्स में वो क्या रिलेशन चल रहा है उनका, पीपल टू पीपल कल्चरल एक्सचेंजेस कितने हैं, मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स में वो एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे फैसेट्स जब आप एक बायलैटरल रिलेशन के आंसर में रिफ्लेक्ट करते हो तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनता है। एंड दिस टेम्पलेट यू कैन हैव प्री प्रिपेयर्ड, आप पहले से इन चीजों को उस टेम्पलेट में फिक्स करके जा सकते हो और उस टेम्पलेट को आप कहीं भी रेप्लिकेट कर सकते हो। तो दैट शुड बी द अप्रोच हियर ऑल्सो कि डिफेंस पार्टनरशिप में एक्सटेंशन ऑफ मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस है, इंटरिम ट्रेड डील हो गई, टैरिफ रिड्यूस कर दिया टू 18%, इंडिया हैज एग्रीड टू रिड्यूस बेसिक न्यूज वाले आइटम्स हैं, रशियन क्रूड ऑयल कम कर दिया, टैरिफ हटा दिए, नॉन टैरिफ बैरियर्स हटा दिए, इनको जीरो कर दिया, $100 बिलियन वर्थ के इंपोर्ट्स का हमने प्रॉमिस किया है, कॉम्पैक्ट लॉन्च किया है, एआई अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप वगैरह वगैरह, एसएमआर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वाला कोलैबोरेशन, दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप इंडिया यूएस में लिख रहे हो तो इसको जरूर लिखिएगा, बिकॉज देयर इज एन एक्टिव effort on both sides to utilize or to harness this aspect of the relationship, nuclear technologies, कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, डिफेंस कोलैबोरेशन है, 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क है, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज, बेसिक चीज है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ इट। अगर आप इसमें से 2-3 भी लिख लेते हो याद रहता है कॉम्पैक्ट, क्योंकि आई डोंट सी अ क्वेश्चन कमिंग डायरेक्टली ऑन कॉम्पैक्ट, लेकिन यूएस के साथ इमर्जिंग डायमेंशंस में आप कॉम्पैक्ट को मेंशन कर सकते हो, उसके साथ ये 2-3 पॉइंट लिख सकते हो, इधर एज सब पार्ट्स ऑफ कॉम्पैक्ट और आप इनको ही पॉइंटर बना सकते हो, तो दोनों ही सिचुएशन में ये काम आ जाएंगे। लॉन्च ऑफ मिशन 500 ये बहुत 2020 से चल रहा है कि हमें $500 बिलियन का ट्रेड करना है, और अभी टारगेट 2023-30 कर दिया है, पहले 25 था अभी 30 कर दिया, $500 बिलियन तक ट्रेड पहुंचाना है। एनर्जी सिक्योरिटी ऑब्वियसली जो इंडिया ने इम्पोर्ट का बात की है उनसे, आईसेट रीब्रांडेड एज ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, तो सेमीकंडक्टर एआई वगैरह वगैरह सब यहाँ पर यूज हो रहा है। नासा इसरो, इसमें निसार सैटेलाइट आ जाएगी, स्ट्रेंथनिंग क्वाड पार्टनरशिप, क्लासिक इंडिया यूएस में क्वाड जरूर लिखना है, आईमैक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, एकेडमिक वगैरह वगैरह। इसमें अगर कंसर्न्स आते हैं ना तो वहां पर आप ये माइग्रेशन मोबिलिटी वाला पॉइंट डाल सकते हो कि H1B वीजा पे इशू हुआ है, वीजा एक्सटेंशन पे इशू हुआ है, वीजा अलॉटमेंट पे इशू हुआ है, तो वो सारे कंसर्न्स रहे हैं रिलेशनशिप के बीच में। अदरवाइज पीपल टू पीपल एंगेजमेंट हमारा डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी इन यूएस। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन डिफेंस में 4 मेजर एग्रीमेंट, GSMOIA, GSOMIA, लेमुआ कोमकासा बेका हुए हैं, मालाबार एक्सरसाइजेस होती हैं, युद्ध अभ्यास होता है, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ये जरूर लिखना है आपको। अगर यूएस के ऊपर क्वेश्चन आता है, रशिया के ऊपर क्वेश्चन आता है, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, एक डिफेंस मिनिस्टर दूसरा फॉरेन मिनिस्टर, यू हैव टू मेंशन इट एक्सप्लिसिटली। इंडसेक्स, आईसेट, अगेन आईसेट रीब्रांडेड एज ट्रस्ट, ये दोनों लैंडमार्क इनिशिएटिव्स हैं काउंटर टेररिज्म के ऊपर, no need to speak more on that, we all know how supportive US is. India's trade surplus है which narrowed down to $34 billion because of the insistence of incumbent president कि भाई आप हमसे हमारे यूटिलाइज करते हो हमारी मार्केट को और हमें आप रेसिप्रोकल एक्सेस नहीं देते हो, तो उस वजह से दिस इज नैरोइंग डाउन। दिस वाज अ ह्यूज गेन फॉर इंडिया जब ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इट यूज्ड टू बी अराउंड $40 बिलियन, reducing to $34 billion. They are trying to actively reduce it further.
पैरिटी लाने की कोशिश. Third largest investor in India, cumulative FDI inflows of $70 billion and bilateral trade is somewhere around $150 billion. You can round it off, 150 बिलियन का है. इसको 500 बनाने की कोशिश है by 2030. सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन पुराना हो गया, बट इसमें आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMR, वो वाला एंगल डाल सकते हो न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन पे. ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस 2023 G20 समिट के टाइम पे हुआ था. सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI के में इंडिया पार्ट बन गया है. मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भी इंडिया पार्ट बन गया है. इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी पे दोनों काम करते हैं. IMAC, I2U2, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत ही बेसिक पॉइंटर्स हैं. अब इसमें डायरेक्ट इंडिया US रिलेशन पे आता है, तो आप इसमें से ये सारे मेजर जो रीसेंट पॉइंटर्स हैं वो डाल सकते हैं. अगर मान लीजिए इंडिया एज अ बैलेंसिंग पावर बिटवीन US एंड रशिया, इस डायमेंशन पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप US में ये सारे पॉइंट डाल सकते हो, इनके इश्यूज डाल सकते हो, फिर रशिया के साथ कोलैबोरेशन डाल सकते हो. तो ये पॉइंटर्स आपके एज इट इज यूज हो जाएंगे. आपको इसके लिए पूरा रट के जाने की कोई जरूरत नहीं. अब बस ये एग्जाम्पल याद रखिए कि स्ट्रेटेजिक डोमेन में हम कहाँ कोलैबोरेट कर रहे हैं, डिफेंस में हम कहाँ कर रहे हैं, इस टाइप से. साइंस एंड टेक में क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप है, आईसेट है, आर्टेमिस अकॉर्ड, निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. दीज आर द फ्रिक्शन पॉइंट्स एंड रिलेशनशिप जो अभी हम बात कर रहे थे कि सब कुछ स्मूथ नहीं है, कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं. तो वो इश्यूज क्या क्या है? इंडिया पाकिस्तान हाइफनेशन है. ऑपरेशन सिंदूर के लिए वो क्रेडिट वगैरह ले रहे थे. नेबरहुड स्टेबिलिटी के ऊपर इंडिया का फोकस रहता है, बट यूएस का वो कंसर्न नहीं है. वेस्ट एशिया में इंडिया हैज ट्राइड टू डीहाइफिनेट द रिलेशनशिप. यूएस इज मोर एक्टिवली इन्वॉल्व एंड दे वांट टू प्रेशराइज इंडिया इनटू कमिंग टू देयर साइड. टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ डिस्प्यूट्स हैं. इंडिया का GSP हटा दिया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस हटा दिया. डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर डिस्प्यूट आता है. इनफैक्ट इसके ऊपर जब जो गूगल टैक्स लगाते थे वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद हटाना पड़ा हमें. इक्वलाइजेशन लेवी वगैरह कुछ लगाते थे 6% का. ट्रम्प्स मागा कैंपेन, अगेन कॉन्ट्राडिक्टिंग विथ इंडिया सेल्फ रिलायंस. मतलब कॉन्ट्राडिक्टिंग क्या, दोनों एक ही चीज करते हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. इंडियाज मल्टीलैटरल पॉलिसी डज नॉट सिट वेल विथ यूएस. ह्यूमन राइट्स, डोमेस्टिक पॉलिसीज के ऊपर उनके कमेंट आते रहते हैं. डेटा सॉवरेनिटी के ऊपर एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि डेटा लोकलाइज हो, वो होने नहीं देना चाहते. IPR स्टैंडर्ड्स के ऊपर इशू आता है, बट नॉट अ मेजर वन. दैट इज मेन. ये वाला यूरोप के साथ ज्यादा है, डेटा लोकल IPR स्टैंडर्ड्स वाला. वे फॉरवर्ड इज ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनलाइज आईसेट, जिसको ट्रस्ट बना दिया. कॉम्प्रिहेंसिव FTA दैट हैज टू बी साइंड, नॉट जस्ट नेगोशिएट. टाइप 1.5 डायलॉग बहुत बढ़िया करने की जरूरत है. स्टेबलाइज एनर्जी ट्रेड, कि भाई आप पहले से डिसाइड कर लो कि आप हमें LPG प्रोवाइड कर रहे हो, LNG प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस हिसाब से हम अपनी डाइवर्सिफिकेशन नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे. को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर. तो बेसिकली वही है. As President Bush once said, the world will see what two great democracies can do when they trust each other. तो इस टाइप का कोई भी एक बढ़िया सा कोट, अगर आप इंट्रोडक्शन में अगर कोट नहीं डाला है तो फिर आप यहाँ पे कोट से कंक्लूड कर सकते हो. चलेगा. इंडिया चाइना इंच टुवर्ड्स माइल्स, ये बहुत ही रिसेंट इंट्रोडक्शन है जो बहुत ही नया सा आ रहा है. वी आर इन इंच स्टैंड्स फॉर इंडिया चाइना एंड माइल्स स्टैंड फॉर मिलेनियम ऑफ एक्सेप्शनल सिनर्जी. अ कोट फ्रॉम PM मोदी. इंडिया चाइना के ऊपर आप ये डाल सकते हो. 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हो चुका है, वो भी डाल सकते हो. तो इन इंट्रोडक्शन बन सकते हैं. 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज. Chinese president called for a dragon elephant tango, but the Himalayas are too, I'll say, narrow for this tango. So, but anyways, 3D approach रहा है after the Galwan incident. Disengagement, de-escalation and de-induction. China currently accounts for 0.32% of India's total FDI inflows. Not a major one, but an important one. इसके ऊपर फिर वो प्रेस नोट 5 आ गया था वगैरह वगैरह. We don't need to go in this in more detail. दिस इज बेसिक हिस्ट्री, आई वोंट डिस्कस इट. मतलब आपके क्वेश्चन में आप ये कहाँ ही डालोगे. सो देयर इज नो, नॉट मच यूटिलिटी. आई वोंट से नो यूटिलिटी, मच यूटिलिटी नहीं है. उससे बेटर अगर आप ये मेजर इश्यूज पे ज़्यादा कंसर्न ये आप आंसर में डालने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा. चाइनीज असर्टिवनेस, शिफ्ट इन US स्टैंस, बाउंड्री इशू है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे. अच्छा, इसमें जब आप इस टाइप का कोई इशू डाल रहे हो, जैसे ये वाला, ये जो बहुत ही रिसेंट इश्यूज हैं, इस टाइप का आप कुछ डालने की कोशिश कर रहे हो, तो आप वहाँ पे एक छोटा सा मैप डाल सकते हो. यू डोंट नीड टू ड्रॉ द एंटायर इंडिया का मैप, बट इवन दिस मच वुड सफाइज, बिकॉज यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर आ गया, सेंट्रल सेक्टर आ गया, ईस्टर्न सेक्टर आ गया, और जो हॉटस्पॉट थे डिस्प्यूट वाले, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो कि भाई यहाँ यहाँ हमारा इशू रहा है. सो दैट वे इट विल बी अ बेटर रिफ्लेक्शन. और 15 मार्कर है तो फिर तो स्पेस होता ही आपके पास.
चारा वाला कौन सा था, सलामी स्लाइसिंग, यस, स्ट्रेटजी ऑफ सलामी स्लाइसिंग थ्रू डुअल यूज विलेजेस, देपसांग प्लेन्स, और यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी वगैरह, ये जो यहाँ पर इशू रहा था, पांगोंग सो पे जो इशू रहे थे, वो हॉटस्पॉट्स अगर आप एज एन एग्जांपल यूज करना चाहो तो। वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख में जो इशू रहा है, मिडिल सेक्टर में इशू रहता है, ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल सिक्किम के पास इशू रहा है। तो दोज आर मेजर फ्लैश पॉइंट्स। 2025 डेवलपमेंट्स में स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है, पार्शियल डिकपलिंग हुआ है, थिंग्स आर ऑन एन इम्प्रूवमेंट नोट, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अभी यूएस भी डायरेक्ट पंगा ले रहा है, तो फिर वी नीड टू काम डाउन। China is very smart that way. They don't fight multiple wars at one time. So next, obviously the irritants, China-Pakistan nexus. CPEC POK से जा रहा है, इंडिया is concerned with that. हमारी sovereignty को, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हैम्पर करता है। वाटर रिसोर्स डिस्प्यूट, नो वाटर शेयरिंग ट्रीटी, और मैदांग काउंटी में वो सुपर डैम बना रहे हैं। साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र के बारे में जो डेटा शेयर करते थे, रिवर वाटर शेयरिंग, डेटा शेयरिंग जो था, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया है। सो दोज आर इश्यूज। इकोनॉमिक इश्यूज क्या है? ट्रेड डेफिसिट इट एन ऑल टाइम हाई ऑफ $112 बिलियन। नाउ जस्ट इमेजिन, आपका यूएस जो सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके साथ सरप्लस 34 का है, और यहाँ एक इकोनॉमी के साथ आपका 112 बिलियन का डेफिसिट है। इट्स अ मेजर वन। इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। प्रोडक्शन डिपेंडेंस, इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना आर इंडस्ट्रियल गुड्स 98.5%। रिपीटेड वीटोज, यूएन सेक्शंस ऑन पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, मतलब ये तो क्लियर है। इंडिया की एंट्री इनटू एनएसजी दे ब्लॉक। सो ऑल दोस थिंग्स आर वेरी एक्सप्लिसिट। देयर इज नो इवन, दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू हाइड इट, क्लियरली वो करते हैं। Apologies for my throat. BRI, but we'll discuss it later. BRI को एक अच्छा पॉइंट बना के डालेंगे। मेजर प्रोजेक्ट्स, CPEC, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो दोनों वेस्ट में भी हो गया, ईस्ट में भी हो गया, बोथ आर कंसर्न्स फॉर इंडिया। इंडिया का जो चाइना का मलक्का डिलेमा है, उसको ओवर मतलब बाईपास करने के लिए दे हैव प्रपोज दिस चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैरीटाइम सिल्क रूट जो सबको पता है, चाइनाज इंडियन नेबरहुड। अब यहाँ पर आप BRI वाला पॉइंट बना सकते हो, दैट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव is not just a strategy to encircle India, but it is also an attempt to push India's neighbors away from India. आप उनको डेट ट्रैप में डालोगे, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, आप उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एक्वायर करोगे, उस तरीके से आप उनकी नेशनल सोवरेनिटी को तो हिंडर कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप आपके ऊपर डिपेंडेंस बढ़ा रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना। वो कंट्रीज चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगी और उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हैम्पर होगी। अब इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो दूसरी नेबर का होता है, बिकॉज मोस्टली जो कंट्रीज यहाँ पर हैं, दीज आर एक्टिंग एज बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना आर मेजर जाइंट्स, तो उनको फिर वही पोटेंशियल डुअल यूज फैसिलिटीज इन एशिया वगैरह, मतलब वही है BRI वाला पॉइंट, यही है। उसके सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ लिखे हुए हैं उन्होंने। चाइना एंड इंडिया नेबर, नेपाल में वो कर रहे हैं चाइना नेपाल रेलवे, ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर, सागर माथा फ्रेंडशिप, श्रीलंका के साथ कोलंबो हम्बनटोटा पोर्ट, 99 ईयर लीज टू चाइना, सबको पता है। सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट इरिटेंट्स विथ चाइना, तो आप इनको एज इट इज मेंशन कर सकते हो। और बाद में जब हम नेबरहुड पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इन पॉइंटर्स को ना हम एज इट इज, एक पॉइंट हमेशा बनेगा इंडिया के नेबरहुड रिलेशंस में, एक पॉइंट हमेशा बनेगा कि चाइना के साथ हमारा कंपटीशन है हर पॉइंट पे, तो वो एक आपका परमानेंट पॉइंट बन ही जाएगा। बस उसमें आप एग्जांपल अलग स्पेसिफिक डालिए, जैसे नेपाल आया तो सागर माथा फ्रेंडशिप है, जो लिपुलेक लिम्पिया दोरा काला पानी वाले टेरिटरी है, उसको वो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका के साथ हम्बनटोटा, कोलंबो पोर्ट क्लासिक एग्जांपल्स है। मालदीव के साथ चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है।
म्यांमार के साथ तो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर रहा है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन रहा है। बांग्लादेश क्लासिक एग्जाम्पल, ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 97% ऑफ चाइनीज tariff lines, Padma Bridge rail link project, $900 million pledged in 2025। तो आप इतना जब किसी को डिपेंडेंट बनाओगे तो फॉरेन पॉलिसी तो हैम्पर करेगी। Coming to South China Sea, now I don't see South China Sea becoming a question as it is, but इसमें कुछ ना कुछ ऐड करके या माइनस करके वो डालेंगे अगर क्वेश्चन इस पे आता है तो बेसिक इंट्रोडक्शन रखना है जो करंट अफेयर्स से होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी, ऑयल एंड गैस है, शिपिंग लेन है, मैरीटाइम लिंक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिशिंग ग्राउंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है। तो इसको आप पॉइंट नंबर 1 बनाइएगा। रिच ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, शिपिंग लेन, क्योंकि मेजर जो 1/3 ऑफ ग्लोबल शिपिंग पासेस थ्रू इट, एज सिंपल एज दैट। स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम लिंक बिटवीन पैसिफिक एंड इंडियन, तो वो बहुत ही क्रूशियल बन जाता है। इंडियाज इन्वॉल्वमेंट क्या रहा है, 55% ऑफ इंडिया ट्रेड विद इंडो पैसिफिक रीजन passes through waters of South China Sea, offsetting China's advantage in Sino-Indian border। तो अगर इंडिया इज समहाउ एबल टू मैनिपुलेट और कंट्रोल कि वहां पर क्या चल रहा है साउथ चाइना सी में, तो यहाँ पर लेवरेज मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पर चाइना हैज एन अपर आर्म कि जब वो चाहते हैं वो इंकर्जन करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं एंड देन दे पुल ऑफ। तो सलामी स्लाइसिंग टेक्निक भी वही है कि वो बंडलिंग जो पैकेज प्रोवाइड करते हैं ना कि हम इस पर भी क्लेम करेंगे, इस पर भी क्लेम करेंगे, बाद में हम बोलेंगे कि देखो हम इस पे अपना क्लेम छोड़ रहे हैं, आप हमें ये टेरिटरी दे दो। पर शुरुआत में तो क्लेम आपने ही किया था दोनों पर। दे आर ऑल्सो डूइंग दिस विद भूटान ऑल्सो, नेपाल ऑल्सो, बट दैट इज देयर स्ट्रेटजी। इंडिया ग्रोइंग स्टेक्स इन द रीजन, इंडिया ने क्या किया, फिलीपींस को 100 ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स एक्सपोर्ट किया है। Indian Navy for the first time conducted joint exercises with US, Japan and Philippines in South China Sea. So India is also showing aggression in that region. India's advocacy for rule-based international order, freedom of navigation, classic philosophical angle है। Efforts to contain China, border infrastructure, Darbuk Shok, Oldie Road, दौलत बेग ओल्डी रोड जो बनाया है लद्दाख में, अटल टनल बनाया है, सेला टनल बनाया है अरुणाचल में, बॉर्डर विलेजेस वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस प्रोग्राम करके कुछ है, वो बॉर्डर एरियाज में जो विलेजेस हैं उनको दोबारा से रीडेवलप कर रहे हैं ताकि उनमें पॉपुलेशन बसे। डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस वेपनरी, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, रिवाइज्ड एफडीआई नॉर्म्स है। इसमें प्रेस नोट 5 का आप एक्सप्लिसिटली सब्सटेंशिएशन डाल सकते हो दैट इंडिया के जो बाउंड्री वाले कंट्रीज हैं, बॉर्डर वाली कंट्रीज हैं, वो कितना एफडीआई डाल सकती हैं या नहीं डाल सकती हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। प्रेस नोट 5 PN5 एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, इंडिया बैंड ओवर 200 चाइनीज एप्स। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स अलायंस क्वाड बनाया, आशियान सेंट्रलिटी की हम बात करते हैं, आशियान के साथ हमारा एंगेजमेंट है। नेवल प्रेजेंस हम बढ़ा रहे हैं, नेकलेस ऑफ डायमंड्स, मिलिट्री अपग्रेडेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इसका क्लासिक एग्जांपल है। वे फॉरवर्ड ऑब्वियसली क्या है, regular engagement through SCO and BRICS can help address security dilemma, but this security dilemma I do not see it being addressed, but there's no point what I think। आपको बस वे फॉरवर्ड में यही लिखना है, सॉरी। म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी की बात करनी है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी से हम उसको ठीक कर सकते हैं। पुअर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, इसको हम यूज कर सकते हैं विलेज एरिया डेवलपमेंट में, ताकि वो जो एम्प्टी विलेजेस को एक्वायर करने के लिए वो कोशिश करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, दैट वुड बी अनसक्सेसफुल। रीजनल इंटीग्रेशन थ्रू बिम्स्टेक, calibrated engagement, strengthening asymmetric deterrence and accelerating domestic technological industrial capabilities। Obviously खुद को strong करो, simple as that। The future lies in competitive cooperation where economic pragmatism coexists with sovereign red lines and calibrated deterrence TLAC। Not much useful। This was one phrase that I really liked, you can use this, competitive cooperation। इंडिया और चाइना के बीच में ये हमेशा रहेगा because both are rising powers। इंडिया रशिया रिलेशन, क्लासिक पॉइंटर्स बनेंगे, इंडिया रशिया ओल्ड फ्रेंड्स, उनके बीच जो चलिए स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2010, आप इसी को इंट्रोडक्शन बना सकते हो। 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट हुआ था, वो बना सकते हो इंट्रोडक्शन में। इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर नेगोशिएशन चल रहे हैं, और खैर ये तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, यू कैंट यूज दिस एज एन इंट्रो, बट आई बिलीव दिस इज अ गुड इंट्रो क्योंकि ये प्रेजेंट स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बफर है, बैलेंसिंग चाइना है, यूरेशियन स्टेबिलिटी, तीनों के लिए
एरियाज ऑफ कॉपरेशन सिग्निफिकेंस ऑफ रशिया में यहाँ पर आता है। डिफेंस कॉपरेशन में 45% ऑफ इंडियाज आर्म्स इम्पोर्ट, डिफरेंट इतने सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हम वहाँ से लाते हैं। इंट्रा एक्सरसाइज है इंडिया रशिया एक्सरसाइज। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसिट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर, जॉइंट एंगेजमेंट इन द आर्कटिक काउंसिल। ये मैरीटाइम डोमेन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई 2 तो कनेक्टिंग लिंक्स बन गए, तीसरा आर्कटिक में भी हम उनके साथ वर्क करते हैं। तो ऑल दीज आर सिग्निफिकेंस ऑफ रशिया। आपने उनको डिफेंस में देखा, कनेक्टिविटी में देखा, न्यूक्लियर में उडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो डेवलप कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म रोड मैप फॉर 10 मोर रिएक्टर्स, स्पेस कोऑपरेशन, गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को वो ट्रेन कर रहे थे। ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज $68 बिलियन, विच इज वेरी लेस कंपेयरिंग टू द पोटेंशियल। दिस इज वेरी लेस, इसको बढ़ाने की जरूरत है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने प्रोवाइड किया। रूपी रूबल ट्रेड बाईपासिंग स्विफ्ट फॉर 99% ऑफ द ट्रेड, इसको अटेम्प्ट किया गया था। फर्टिलाइजर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। रशियन कंपनी रोजनेफ्ट, गैसप्रॉम, ये इंडिया में बहुत इन्वेस्ट करती है। इंडिया इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन रशियन ऑयल फील्ड्स विच इज सखालिन 1 एंड वांकोर, जो ईस्टर्न रशिया में आता है, वहाँ पर इंडिया ने किया था इन्वेस्ट। मल्टीलेटरल कॉपरेशन ऑब्वियसली, एससीओ, ब्रिक्स, आरआईसी। 2025 डिक्लेयर्ड एज इंडिया रशिया कल्चरल ईयर। दिस इज अ गुड पॉइंटर, आप डाल सकते हो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल लिंकेजेस। तो आप हर एक में से एक एक भी डालोगे तो भी आपके 7-8 पॉइंटर आराम से बन जाएंगे। नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर कोई जरूरत नहीं है इसको डिस्कस करने की, इतने से होगा भी नहीं, अगर आएगा तो इसमें फिर बहुत सारा लिखना पड़ेगा। बट द फैक्ट हियर इज दैट 2024 रशिया सेंट 2 ट्रेन्स कैरिंग कोल टू इंडिया थ्रू फॉर द फर्स्ट टाइम। कोशिश उस पर जारी है। पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन, आर्म्स इंपोर्ट ड्रॉप्ड, डीपनिंग ऑफ इंडिया रिलेशंस, तो इसकी वजह से रशिया को चाइना के पास जाना पड़ रहा है। इंडो पैसिफिक में जो क्वाड का कंस्ट्रक्ट है उससे रशिया को इशू है। रशिया नो लिमिट पार्टनरशिप विद चाइना इज एन इशू फॉर इंडिया। स्लो कनेक्टिविटी इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट बहुत अनाउंस होते हैं, कंप्लीट नहीं होते। ट्रेड डेफिसिट ओवर $60 बिलियन, नॉन एनर्जी बायलैटरल ट्रेड रिमेन्स बिलो पोटेंशियल। इसमें एक और, हाँ, पेमेंट डेडलॉक्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वोस्त्रो अकाउंट हमने ढेर सारे खुले, लेकिन ओवर $40 बिलियन रुपी असेट्स रिमेन ट्रैप्ड क्योंकि सैंक्शंस लग गए। तो वोस्त्रो अकाउंट में ही बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, मतलब वोस्त्रो अकाउंट में मेनली। लैगिंग टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बट नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे अच्छा काम न्यूक्लियर में होता है, वो फटाफट होता है। यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया एक्सपेक्टेशंस इन 3 डिलेमास है। बेसिकली वही है कि इंडिया ने बहुत एम्बिवेलेंट स्टैंड लिया है। इंडिया इज ट्राइंग नॉट टू अलाइन विथ यूएस एंड नॉट टू ऑफेंड रशिया एट द सेम टाइम। दोनों चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बेस्ड पार्टनरशिप, आपको यही कीवर्ड्स डालने हैं, एक्सप्लेनेशन में जाना ही नहीं है। वे फॉरवर्ड आएगा, एक ऐसा बॉक्स बना के, या तो वे फॉरवर्ड मत डालिए या फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप डाल के एक बॉक्स बनाइए, 1 2 3 4 एरो डालिए, कोई 4 कीवर्ड डालिए, दैट्स इट। डाइवर्सिफाई बियॉन्ड एनर्जी, फाइनेंस, फार्मा, फिनटेक में जाइए, एग्रीटेक में जाइए, रुपी रीइन्वेस्टमेंट कीजिए, जो वहां पर पैसा फंसा हुआ है उसको रीइन्वेस्ट कीजिए। स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी, ज्वाइंट आर्कटिक रिसर्च, दिस इज एन इमर्जिंग डोमेन, इसको आप जरूर आंसर में डालिएगा। ईस्टर्न यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम, उसके साथ एफटीए, इस पर नेगोशिएशन चल रहा है। ट्रैक टू कल्चरल कनेक्ट, बहुत बढ़िया काम हो रहा है इस पर। स्किल माइग्रेशन कॉरिडोर टू फार ईस्ट। इन एन एरा ऑफ स्ट्रेटेजिक हेजिंग, इंडिया रशिया's पॉलिसी मस्ट रिफ्लेक्ट रियलिज्म, रेजिलियंस एंड रिस्पेक्ट फॉर हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप। तो हमारा तो बहुत पुराना नाता है इनसे इन अ क्लासिक वे, एंड दे हैव बीन अ गुड फ्रेंड टू अस। इंडिया जापान रिलेशंस टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल नेशन, टर्म्ड इंडिया एज, अच्छा उनकी बुक है वो, कोई बात नहीं, यू कैन यूज दिस। एडॉप्शन ऑफ जॉइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डिकेड, या फिर इंडिया और जापान के बीच में जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें आप ये देख सकते हैं कितना ज्यादा, मतलब बेसिकली कोई ऐसा डाइवर्जेंसेस है ही नहीं, मेजर कन्वर्जेंसेस ही है, नेचुरल एलाइज बन के निकलते हैं। शायद यहीं पर उन्होंने लिखा था, जापान नेचुरल एलाई, यही वो बोलते हैं। शिंजो आबे हैज डन ग्रेट जॉब हियर रिलेशन को आगे ले जाने में। डीआरडीओ एंड एटीएलए कोलैबोरेशन ऑन मिसाइल डिफेंस, 13 की एग्रीमेंट्स, मतलब जो एनुअल पीएम समिट हुआ था उसमें चंद्रयान 5 के बारे में भी उन्होंने कॉपरेशन लिया है। लेट्स डिस्कस, दीज आर द मेन पॉइंटर्स, वो तो करंट था। अगर आपको इंट्रोडक्शन बनाना है तो आप इससे बना सकते हो। स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप डिफाइंड इन 2014, इंडिया जापान का ये शेयर करते हैं। जियोपॉलिटिकल कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एंड फ्री एंड ओपन इंडिया, इंडो पैसिफिक वाला जो विजन है, दोनों का कन्वर्जेंस बनता है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में काम करते हैं, G4 में काम करते हैं यूएनएससी रिफॉर्म के लिए, 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, सेपा ने साइन किया है, 25 बिलियन का बायलैटरल है। सिक्योरिटी में 2+2 मिनिस्ट्रियल है। अभी हमने यूएस के साथ किया, रशिया के साथ कर लिया, जापान के साथ हो गया। ये याद रखिएगा,
कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके साथ 2+2 चल रहा है, और अगर वो कंट्री के बारे में पूछा गया है तो आपको 2+2 जरूर मेंशन करना है, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, वो भी मिनिस्टीरियल लेवल पर। इसके ऊपर सिर्फ समिट होता है, मतलब पीएम ही जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइजेज मेंशन करना चाहते हो तो जेमैक्स है, धर्मा गार्जियन है, वगैरह वगैरह। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में जापान के साथ कोलैबोरेशन है। इंडियाज एक्ट ईस्ट एंड जापान पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इसमें ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इंडिया विजन 2025 में ऑब्वियसली इंडियन ओशन वगैरह वाली जो पॉलिसी है वो साथ में आती है। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, वो रिपीट होने लगा 2020 करंट इवेंट्स वाला। ना फ्रिक्शन पॉइंट्स, पहला तो रशिया वाला फैक्टर है। इंडिया इसमें वॉस्टॉक एक्सरसाइज में जाता है, जो साउथ कोरियल आइलैंड में हुआ था, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। Balancing between Quad and BRICS. India has long adopted a non-aligned approach as opposed to pro-US foreign policy stances of Japan and Australia. तो इंडिया क्वाड में भी है, ब्रिक्स में भी है, तो वहां पर उनको थोड़ा सा कंसर्न होता है, बट ओवरऑल जो कन्वर्जेंसेस है वो ज्यादा है, वो ओवर पावर करते हैं। स्लो प्रोग्रेस, एक्चुअल एफडीआई रिमेन्स लिमिटेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कॉन्स्ट्रेंट्स, इश्यूज लाइक ई कॉमर्स रूल्स, ओसाका ट्रैक में जो हुआ था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसीईपी से इंडिया ने विदड्रॉ कर लिया था, वो इशू रह गया था। लास्ट ट्रेड डेफिसिट विद जापान। सिंपल सिंपल ही चीजें हैं, और यूल सी कि यही जो टेम्पलेट है, यही जो फ्रेमवर्क है ना, वो सारे बायोलेटरल रिलेशंस में रिपीट होगा, भले ही वो मेजर पावर के साथ हो या नेबरहुड के साथ हो। तो विल मूव फास्ट यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि सेम टेम्पलेट रिपीट होना है। क्या रिलेशन है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, बस पॉइंटर्स बदलेंगे, उनको सब्सटेंशिएट करना है। उसमें भी आई हैव गिवन यू पॉइंटर्स आल्सो कि भाई आप हिस्टोरिकल डायमेंशन डिस्कस कीजिए, पॉलिटिकल डायमेंशन डिस्कस कीजिए, इकोनॉमिक या ट्रेड डायमेंशन डिस्कस कीजिए, डिफेंस, स्ट्रेटजिक, एनर्जी, पीपल टू पीपल, कल्चरल डायमेंशन डिस्कस कीजिए। उसके अलावा आप मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स में कैसे कोलैबोरेशन हो रहा है, 8-10 पॉइंटर तो आपके वहीं बन जाएंगे, मोर देन एनफ फॉर अ बायलैटरल रिलेशनशिप। और अगर बायलैटरल 4 क्वेश्चन आने हैं, बायलैटरल 2 में भी आ गया, तो बाकी 2 में बायलैटरल नहीं आएगा, तो वो जो आएगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम आई वांट अस टू गिव मोर टाइम देयर। एक्सपेंड जॉइंट एक्सरसाइजेस, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। सिंपल जो अच्छा पॉइंट यहाँ पर था, अडॉप्ट अ जापान स्टाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल टू मीट डेडलाइंस। इंडिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, कंप्लीट ही नहीं करते, यहाँ पर बहुत काम आएगा, ये एक अच्छा पॉइंट बन सकता है। यूरोपियन यूनियन मदर ऑफ ऑल डील्स, सीधा वही इंट्रोडक्शन बनाइए, मदर ऑफ ऑल डील्स, यही इंट्रोडक्शन बनाइए, कहीं नहीं भटकना। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल एस्टैब्लिश 2022। अब इसके कोलैबोरेशन बिना देखे आई कैन टेल यू द पॉइंट्स कि भाई ट्रेड में क्या चल रहा है, कल्चर में क्या चल रहा है, उसके डेमोक्रेसी में क्या चल रहा है, वगैरह, राइट्स वगैरह के बारे में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में कैसे कन्वर्जेंस आता है, और मतलब वही सारे कनेक्टिविटी, आईमैक उसमें आ जाएगा। तो वही सारे पॉइंट्स हैं। इरिटेंट्स भी आप पहले से जानते हो, सीबीएम बना दिया उन्होंने, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स डाल देते हैं। उसके अलावा वो रशिया यूक्रेन वॉर में वो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, हम एम्बिवेलेंट स्टैंस लेते हैं, वहाँ इशू आता है उनको। चाइना के साथ बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं इंडिया को, तो इंडिया को इशू आता है। सिमिलर टेम्पलेट, बस वही आपको पॉइंटर्स फिट करने हैं। स्ट्रेटेजिक मल्टीपोलैरिटी है, बोथ सर्विस स्टेबलाइजिंग फोर्स, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर $137 बिलियन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूएस से ज्यादा ट्रेड हमारा इनसे होता है। कंट्रीब्यूट 70% ऑफ इंडिया एफडीआई, टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी। अच्छा, इसमें एक और इंट्रोडक्शन आप डाल सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर वो ईयू में आएगा। जो ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया है ना ईएफटीए के साथ, बट आई थिंक वो रीजनल ग्रुपिंग में ज्यादा ठीक रहेगा, ईयू में नहीं रहेगा, वो ईयू बहुत बड़ा है। कोलैबोरेशन ऑन एआई, 6G, सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, और उसमें ईयू में जो भी हमारा रिलेशनशिप है उसको पायनियर कौन कर रहा है? फ्रांस। अभी रिसेंटली इटली और जर्मनी दोनों। फ्रांस तो मतलब ऐसा है कि दांत काटी दोस्ती। जब पूरी दुनिया ने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सैंक्शंस लगाए थे, फ्रांस वाज द ओनली कंट्री दैट कोलैबोरेटेड विद अस, और तब से हमारा रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा है। तो वो नेचुरल एलाइज वहां पर हमारा फ्रांस है। जब भी कोई इशू आता था P5 में फ्रांस हमारे साथ खड़ा रहता था। So France has been a pioneer in India's evolving and expanding relationship with European Union. Maritime security में issue, maritime security में दोनों के convergences हैं। ग्रीन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन है, ईयू की ग्रीन डील है, इंडिया का नेट जीरो है। कनेक्टिविटी, आईमैक, डेमोग्राफिक कॉम्प्लीमेंटेरिटी, उनका एज हो रहा है, हमारा यंग है। स्पेस कॉपरेशन हो रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस के साथ था। वन प्लेनेट समिट हमने बनाया था। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन इन न्यू दिल्ली, IFC-IOR। तो इसमें भी इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि फ्रांस इज अ रेजिडेंट पावर इन इंडियन ओशन रीजन, रेजिडेंट पावर इन इंडियन ओशन रीजन, इस वजह से वहाँ पर कोलैबोरेशन बन जाता है। जो पायरेसी वगैरह के कंसर्न्स हैं उसमें भी हमारा कोलैबोरेशन है। पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन,
only 1.9% of EU trade. China Balancing Act, Carbon Border Tracks, Data Adequacy Status, IPR वाला भी यहाँ पर एक इशू रहेगा. Divergence on Russia, Human Rights Posturing. Migration Sensitivities, Migration and Mobility Pact. But I think this is a good thing क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, तो इरिटेंट से ज़्यादा इस पर अगर काम किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा. India UFTA, mother of all these, tariff elimination 99.5%, 97.5%, service liberalization, प्रोफेशनल मोबिलिटी, माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप यहाँ पे आ गया था, उसका सोल्यूशन यहाँ आ गया. एग्रीकल्चरल सेफगार्ड्स हैं, एमएसएमई फ्रेंडली रूल्स ऑफ ओरिजिन है, ऑटोमोबाइल कंसेशंस हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं. अच्छा, इसमें वो भी था, चलो आगे आएगा तो आई डिस्कस. सिमिट्री इन फार्मा है ऑब्वियसली. ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, क्लीन एनर्जी एंड एनर्जी क्लाइमेट पार्टनरशिप, CECP, ISA, Horizon Europe. This could be a good conclusion, I believe. Providing Indian scientists access to the world's largest research and innovation program. Way forward, IMAC, civil society, balanced global voice, कार्बन क्रेडिट रेसिप्रोसिटी की भाई अगर आपके यहाँ हमारे यहाँ उसने बचाया है तो आप उसे रिकॉग्नाइज करो, आप वहाँ पे उससे अलग से CBAM मत मांगो. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइनमेंट वगैरह वगैरह. कनाडा के साथ अच्छे थे, नीचे आए, फिर से ठीक हो रहे हैं. प्रैग्मेटिक रीसेट इन 2026, ये बहुत ही करंट वाली चीज़ें हैं, इतना नहीं जाना है. एनर्जी एंड रिसोर्स सिक्योरिटी में हम कहाँ पे उनके मैट्रिक्स में आते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कनाडा ने ISA ज्वाइन किया, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस ज्वाइन किया. ACT पार्टनरशिप, ट्राइलेटरल MOU बिटवीन इंडिया, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर एक काम हो रहा है. मेन यहाँ पर आता है जियोपॉलिटिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कनाडा, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, मल्टीलेटरल गवर्नेंस, तीनों में इंडिया और कनाडा साथ में काम करते हैं. Canada's vast reserves of lithium and cobalt are vital for India's PM E-drive. मतलब not just for PM E-drive but for the critical mineral mission of India. लिथियम कोबाल्ट इनके बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं. इनके पास यूरेनियम भी है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी लाते हैं, कॉर्पोरेट प्रेजेंस भी है, होम टू 1.8 मिलियन कैनेडियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन, बहुत बड़ा डायस्पोरा है वहाँ पर. स्टूडेंट मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ स्टूडेंट मोबिलिटी. जैसे ही टाइज में इशू आया था, बहुत सारे वीजाज रिजेक्ट होना शुरू हो गए थे, स्टूडेंट वीजाज, वहाँ पे कंसर्न हो गया था. फूड सिक्योरिटी, लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लेंटिल्स, 25% ऑफ MOP, फर्टिलाइजर वहाँ से आ रहा है. मेजर चैलेंजेस, सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी एलिगेशंस, जो कुछ भी हुआ था, नेचर केस वगैरह वगैरह, आप इसको एज एन एग्जांपल डाल सकते हो. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स, सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज को सपोर्ट करने वाले लीडर्स वहाँ बैठे होते हैं, तो वो एक इशू है. FTA हर्डल्स हैं, डायस्पोरा पॉलिटिक्स है, स्लो ऑपरेशनलाइजेशन, हर जगह ये तो काम तो ये है ही. जितना भी आप एग्रीमेंट करते हो उसका कितना इंप्लीमेंट हुआ, वो एक इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है. सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स ये भी करते हैं. डेटा सॉवरेनिटी मॉडल्स है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो, वीजा प्रोसेसिंग वॉलेटिलिटी जो अभी हमने डिस्कस किया. पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो जो हुआ था ना, इंडियन हाई कमिश्नर को उन्होंने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बना दिया था, तो वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से था, बट इट्स नॉट अ मेजर फ्रिक्शन एज इन द लॉन्ग टर्म ऑफ द रिलेशनशिप. वे फॉरवर्ड, CEPA कंक्लूड कीजिए, क्रिटिकल मिनरल्स जॉइंट वेंचर्स कीजिए, NSA डायलॉग, सबनेशनल एंगेजमेंट वही पैरा डिप्लोमेसी जो हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे, सबनेशनल एंगेजमेंट, मल्टीलेटरल अलाइनमेंट. नए PM आए, चीज़ें ठीक होने लगी. इंडिया UK रिलेशंस, पहले तो वो खुद के रिलेशन संभाल लें. 7 PM विद इन अ स्पैन ऑफ 10 years, 10 to 12 years. PM मोदी, PM स्टार्मर, विजन 2035 रोड मैप, इंडिया UK टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव. CETA के जो मेन फीचर्स हैं, ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 91% गुड्स, ड्यूटीज रद्दी, टैरिफ लाइन, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन. यस, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि ये इंडियन प्रोफेशनल्स को और एम्प्लॉइज को UK सोशल सिक्योरिटी पेमेंट से एग्जेम्प्ट करता है फॉर 3 years. वेरी बिग थिंग भाई. वहाँ पे 3 साल के लिए कोई काम करने जा रहा है प्रोफेशनली और उसको उतना सारा पे करना होता था, पेमेंट जो फी पेमेंट करनी होती है वो इससे एग्जेम्प्ट कर दिया. एग्रीकल्चर में एरियाज ऑफ कॉपरेशन, अगेन फिर वही इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, एनर्जी, जियोपॉलिटिकल, मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स में वही टेम्पलेट. बायलैटरल ट्रेड कितना, $56 billion, एम टू डबल बट 30. डिफेंस में वही है, अजय वॉरियर एक्सरसाइजेस वगैरह वगैरह होती हैं. जियोपॉलिटिक्स में इंडिया UK एक्टिंग एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडिया इंडो पैसिफिक. एनर्जी में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डिक्लेरेशन, ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड. इफ यू कैन रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स तो ठीक है, नहीं तो इसमें से जो याद रह सकता है उतने ही रहो. एक क्वेश्चन में, एक बायलैटरल रिलेशन में अगर आपने 8 पॉइंटर पॉजिटिव, 4-5 चैलेंजेस और 3-4 वे फॉरवर्ड दे दिए, नाउ जस्ट इमेजिन आप 15-17 पॉइंट वैसे ही बना के आ रहे हो, इट वोंट बी एन इशू. बस सब्सटेंशिएट करने के लिए ये की टर्म्स होना बहुत जरूरी है कि भाई इतने का ट्रेड है. आप ऐसा नहीं लिख सकते कि बहुत ट्रेड है, इतने का ट्रेड है. वेरी प्रिसाइज है. कॉलोनियल हैंगओवर है,
हाई वीजा फीस, रेस्ट्रिक्टिव हेल्थ सरचार्जेस, इलीगल माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट इशू है, 1 लाख ऑफ इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स आर देयर, एक्स्ट्राडिशन इशूज हैं, CBAM, IPR राइट्स। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाइए, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को फास्ट ट्रैक कीजिए, एजुकेशन हार्मोनाइजेशन कीजिए, इंडिया यूके नेचुरल पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। सेट कंक्लूजन, कुछ नया नहीं, घर से सोच के जाओ, वहां कुछ नहीं बनाना। बेस्ट रिलेशन इन यूरोप, टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूटेड इन ट्रस्ट, डिफेंस कोऑपरेशन, कन्वर्जेंस ऑफ मल्टीलैटरल ग्लोबल चैलेंजेस। बोथ कंट्रीज फॉर्मली एलिवेटेड टू स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब ये 4-5 कंट्रीज हैं, रशिया के साथ अलग है, जापान के साथ अलग है, यूएस के साथ अलग है, फ्रांस के साथ अलग है, तो इनके की टर्म्स थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, इनको बस एक बार याद कर लेना, ये आपका इंट्रोडक्शन है, रेडी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंडिया फाइनेंस ईयर ऑफ इनोवेशन इज 2026, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये इम्पैक्ट समिट अभी जो हुआ था, दोनों ने साथ में किया था। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, रेजिडेंट पावर इन IOR, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे, MTCR में वासिनार ने ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की एंट्री करवाई, LSG में भी करवाना चाहते हैं। बायलैटरल ट्रेड 12 बिलियन यूरोस का है, नॉट डॉलर्स का। इंटीग्रेट UPI कर लिया, ओब्वियसली वहाँ पे चलने लगा है। साफरान HCL पार्टनरशिप हुआ था अभी रिसेंटली, तो यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी में उनके एक्सरसाइज होती रहती है। काउंटर टेरर में NMFT इनिशिएटिव में वो इंडिया का सपोर्ट करते हैं, फेस कनेक्टिविटी अच्छी है। ISA में साथ में है, CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या है? जैदापुर लायबिलिटी हर्डस, वही न्यूक्लियर पावर प्लांट जब भी आप बनाते हो तो उसकी लायबिलिटी किसके ऊपर कितनी रहेगी, भगवान ना करे अगर कोई इंसिडेंट हो गया अनफॉर्चुनेट, तो कौन कितना पे करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, यही इशू रहता है न्यूक्लियर में। ट्रेड इम्बैलेंस है, प्रोक्योरमेंट डिलेज है, इंडिजिनस कंटेंट ऑफसेट डिस्प्यूट्स है, IPR प्रोटेक्शन अगेंस्ट इशू है, स्टूडेंट वीजा बैरियर्स हैं। न्यूक्लियर कोऑपरेशन में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट से, जैसे ये जो है ना जैतापुर वाला, यूजिंग 2025 शांति एक्ट, तो ये एक्ट इसी चीज को क्लियर करने की कोशिश करता है कि किस पे कितनी लायबिलिटी रहेगी, ताकि यहाँ पे क्लैरिटी रहे कोलैबोरेशन में। वही शांति एक्ट से आप उसको ठीक कर लीजिए। मैरीटाइम रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट कीजिए, ये अभी किसके साथ है? US के साथ है। वैसा आप रेप्लिकेट कीजिए। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और 2047 गोल्स हैं, जो सिर्फ फ्रांस के साथ है, अभी तक और किसी के साथ नहीं। थर्ड वे ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाते हैं हम, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, इंडिया को बहुत सपोर्ट करता है फ्रांस। वैल्यू बेस्ड डिप्लोमेसी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैन थ्राइव इवन विदाउट ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। हम इतने नेचुरलाइज बन चुके हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, क्वाड आ जाएगा, बेसिक इकोनॉमिक रिलेशन, कितना ट्रेड है, डिफेंस में क्या काम कर रहे हैं, चाइना कॉमन इरिटेंट है, डायस्पोरा का कनेक्ट है, कल्चरल कनेक्ट है, वही सारे पॉइंटर्स। नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 24 आइडेंटिफाइड इंडिया एज टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर इन द IPR। सबको इंडो पैसिफिक की पड़ी हुई है, टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर। 3000 एनुअल वीजा स्लॉट्स फॉर इंडियन ग्रेजुएट्स, क्योंकि वही डायस्पोरा। एरियाज कोऑपरेशन CSP है 2020 में, इंडो पैसिफिक कन्वर्जेंस, आसियान सेंट्रलिटी, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। कभी भी आप US की बात करोगे, इंडो पैसिफिक की बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे, जापान की बात करोगे, आसियान सेंट्रलिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि आसियान पर बहुत फोकस किया जाता है। ट्रेड लिबरलाइजेशन, ECTA, क्रिटिकल मिनरल्स पे ये एग्जाम्पल जरूर डालिएगा, काबिल ने वहाँ पर काम किया है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के ऊपर, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट वगैरह 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 वगैरह, SCRI, इंडिया ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी डायस्पोरा, वही पॉइंटर्स हैं, वही पॉइंटर्स हैं, वही टेम्पलेट है, बस डेटा अलग है। तो आप चाहो तो 1 पेजर डाल के आधे पेज पे सारे पॉइंटर ऐड कर लिए, लास्ट में जाते जाते इंडिया ऑस्ट्रेलिया वही रिवाइज कर लिया, सिंपल एज दैट। रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है, इतना अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो कोई नहीं। अब फ्रिक्शन पॉइंट्स, अडानी कोल माइन प्रोजेक्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, वीजा इश्यूज रहते हैं, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इस पर तो पूरी दुनिया वेस्ट को जितना भी सपोर्ट करता है वो रशिया यूक्रेन में यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, इंडिया ने वो नहीं किया है। तो पहले तो इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज किया, लास्ट में सबको समझ में आने लगा कि भाई ठीक है, इंडिया ठीक कर रहा है, फेंस सेटिंग हमेशा गलत नहीं होती। सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट $7 बिलियन, 112 का है चाइना के साथ, $7 बिलियन। वैंडलिज्म ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड एंटी इंडिया एक्टिविटीज, इसमें रेशियल अटैक्स भी हुए थे, तो वो दोनों इश्यूज बन जाते हैं रिसेंट वाले। स्ट्रिंजेंट सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ऑकस के साथ जो रहा है उसमें इंडिया को कोई ज्यादा काम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदू टेम्पल्स का वेंडलिज्म और रेशियली मोटिवेटेड अटैक्स जो इंडियंस के ऊपर हुए हैं, वो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा, फाइनलाइज कीजिए सेका को, चोक पॉइंट स्ट्रेटजी, कोऑर्डिनेटेड डिनायल स्ट्रेटजी, मलक्का एंड सुंडा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन काउंसिल, डायस्पोरा एक्सट्रीमिज्म। अच्छा, इन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी खोल दी इंडिया में, तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। सब नेशनल सिनर्जी कनेक्ट सिस्टर स्टेट्स लाइक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड ओडिशा, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। वाराणसी और
किसको नहीं, अयोध्या और जनकपुर इंडिया नेपाल ने ऐड कर दिया, वाराणसी को जापान के साथ लिंक कर दिया, यहाँ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को उड़ीसा के साथ लिंक कर दिया। तो सिस्टर सिटी सिस्टर स्टेट दोनों काम कर रहे हैं इंडिया, ये अच्छा इनिशिएटिव है। चैप्टर 3 इंडियाज नेबरहुड, 7-8 नेबरहुड है, सबके ऊपर सिमिलर चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है, पर चाइना हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है। तो वही टेम्पलेट है, वही पॉइंटर्स हैं इसमें, क्योंकि इन डेप्थ आ सकता है तो 2-3 इश्यूज को हम खोल के देखेंगे। ये अच्छा इंट्रोडक्शन है इन चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ, शिवशंकर मेनन की बुक है चॉइसेस, जिसमें उन्होंने बोला इंडियाज अप्रोच टू पाकिस्तान इज ऑफन ऑसिलेटेड बिटवीन ऑप्टिमिज्म फॉर पीस एंड रियलिज्म अबाउट सिक्योरिटी। पीस चाहते हैं लेकिन रियलिज्म हमें दिखा देता है कि भाई सिक्योरिटी पहले इंश्योर करो। आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री है, दोस्त बदल सकते हैं पर नेबर नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी। बॉर्डर इशू रहते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, सर क्रीक बाउंड्री, वही एलओसी, सर क्रीक और ग्राउंड पोजीशन लाइन, यही सब है। इंडस वाटर ट्रीटी इशू बन गया है, टेररिज्म एक मेजर इशू है, सीज फायर वायलेशंस, डिसफंक्शनल सार्क, कोई एंगेजमेंट का फॉरम नहीं बन पाता है, चाइना पाकिस्तान रशिया एक्सेस है, अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक बफर जो बनाने की कोशिश करते हैं उस चक्कर में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके ऊपर जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं विथ पाकिस्तान, तो कश्मीर इशू बनता है, गिलगिट बाल्टिस्तान बनता है, पीओके जो वैसे बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर का एक इशू बनता है और सर क्रीक का एक इशू बनता है। तो चारों को छोटा छोटा एक एक लाइन में आप पॉइंटर बना के वहीं खत्म कीजिए। इंडस वाटर ट्रीटी इज अनदर मेजर इशू, इसको अभी हमने अबियंस में डाल दिया, ब्रोकर्ड बाय साइलेंस 1960, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, अबियंस में डाल दिया है। पीसीएट कॉल्ड फॉर अ रिव्यू ऑफ द आईडब्ल्यूटी बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड द नीड फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट। ये 3 रीजन दिए हैं, अगर आप इनको मेंशन कर रहे हो तो इन तीनों को डायरेक्ट मेंशन कीजिएगा। प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी, ठीक है, अगर जैसे आईडब्ल्यूटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो फिर आप इंट्रोडक्शन के बाद ये थोड़ा सा दे सकते हो कि क्या प्रोविजन है। पहला तो ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के पास जाएगी, वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के पास जाएंगी, इंदस झेलम चिनाब इधर, रावी ब्यास सतलुज इधर। 3 स्टेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, परमानेंट इंडस कमीशन, न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड देन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। स्टोरेज राइट्स इंडिया के पास 75 मिलियन एकड़ फीट, MEF मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर। एग्जिट प्रोविजंस है जब दोनों साथ में करते हैं। इश्यूज क्या क्या है, अपोर्शनमेंट के ऊपर 80% पानी उनके पास जा रहा है। सॉवरेनिटी कंसर्न्स है, इंडिया पाकिस्तान लेफ्ट विंग आउटफॉल ड्रेन प्रोजेक्ट पासेस थ्रू द रन ऑफ कच्छ। फ्रीक्वेंट ऑपोजिशन टू इंडियन प्रोजेक्ट्स, रतले, बगलीहार, किशनगंगा, ये सब। डिसएग्रीमेंट ओवर नेगोशिएशन, पहले इस वाले में जो था ना, तो इंडिया आर्ग्यूज दैट स्टार्टिंग बोथ द एक्सपर्ट मैकेनिज्म एंड आर्बिट्रेशन साइमल्टेनियसली वायलेट्स द ट्रीटी। पाकिस्तान दोनों के पास चला गया था साथ में, तो इंडिया ने उसको बोला कि ये सब गलत कर रहे हो। सब ऑप्टिमल डेटा शेयरिंग है ऑब्वियसली। मई 22 2025 अबियंस में डाल दिया। इससे क्या होता है, ट्रीटी एंड नहीं हुई है लेकिन अब इंडिया के पास ऑब्लिगेशन नहीं है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने का। वाटर एंड ब्लड कैन फ्लो टुगेदर, स्ट्रेटेजिक लेवरेज, withhold hydrological data, flush reservoirs at will, redesign hydropower projects to expand storage and time water releases। सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं जब तक वो अबियंस में है। एंटाइटल टू 3.6 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वेस्टर्न रिवर्स, इरिगेशन बनाने के लिए किशनगंगा, रतले, बगलीहार डैम बना दिए, लेकिन अभी इंडिया सिर्फ इतना ही यूटिलाइज करता है और इरिगेट करता है सिर्फ इतने एकर्स को। अगर हम ज़्यादा स्टोरेज बनाते हैं तो हम ज़्यादा कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, भाई उनकी तो लाइफ लाइन ही टिकी हुई है उस पर। इंटर प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर, थर्ड ऑफ इट्स हाइड्रो पावर डिपेंड्स ऑन इंडस बेसिन, तो आप तो बिल्कुल ही चोक कर दोगे उन्हें। रीजनल रिपल इफेक्ट्स, चाइना सेम चीज़ हमारे साथ कर सकता है विद सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश गंगा ट्रीटी के साथ इशू हो सकता है, नेपाल और श्रीलंका के साथ क्वेश्चन हो सकता है, बट इक्वेशन बहुत डिफरेंट है दोनों जगह पर, नो कंपैरिजन। वे फॉरवर्ड, रीनेगोशिएट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इतना, केयरफुल रीजनल डिप्लोमेसी। टेररिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट इशू, जिसमें ऊपर आप एक बहुत ही क्लासिक इंट्रोडक्शन जयशंकर का डाल दीजिए, पीएम मोदी का डाल दीजिए, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, या ऑपरेशन सिंधु से जो न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश हुआ है वो भी डाल सकते हो एज एन इंट्रोडक्शन। रीजंस फॉर बॉर्डर टेररिज्म, पहला तो हिस्टोरिकल टेंशन है, दूसरा कि भाई ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, जोग्राफिकल एडवांटेज है, रगड टेरेन होता है, रेडिकल आइडियोलॉजी, स्टेट स्पॉन्सर। स्टेप्स टेकन, CIBMS, बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम,
काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड टेक्निकल रिस्पॉन्सेज, ऑपरेशन ऑल आउट, बालाकोट वगैरह जो भी हुए थे सारे। इंटरनेशनल एडवोकेसी में हमने लॉबी किया है। अमेंडमेंट्स टू यूएपीए 2019 अलाउड इंडिया टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन होती थी, अब इंडिविजुअल भी है। कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन एफर्ट्स, जिसमें हमने ऑपरेशन सद्भावना है, आर्मी गुडविल स्कूल है। तो इस टाइप से हम लोकल पॉपुलेशन को बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है आर्मी। रेड लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम रिस्ट्रेंट टू डिसाइसिव रिटेलिएशन, जो न्यू नॉर्मल है आफ्टर ऑपरेशन सिंधु, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। क्रेडिबल डिटरेंस, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल नाउ बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान टू स्टॉप टेररिज्म नाउ। ईच टेरर अटैक विल बी रिस्पॉन्डेड विद ग्रेटर स्केल एंड स्कोप, हर बार और ज्यादा मारेंगे। डॉक्ट्रिनल इनोवेशन ऑफ मिलिट्री रिस्पॉन्स टू टेररिस्ट अटैक, इससे मेजर ये हो गया है कि जो डिस्टिंक्शन था बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स वो खत्म हो गया। अब अगर आप यहाँ से टेररिज्म होता है, भले स्टेट करे नॉन स्टेट करे, वी डू नॉट केयर, वी विल रिस्पॉन्ड हार्ड एंड फास्ट विद ग्रेटर स्केल एंड स्कोप। डिबंकिंग न्यूक्लियर डिटरेंस, बोलते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर है, वॉर हो जाएगा वॉर हो जाएगा। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बॉम्ब मल्टीपल मेजर सिटीज ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। तो उनका जो अम्ब्रेला था, जो इल्यूजन था, वो तोड़ दिया है। एंड ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सब कन्वेंशनल और कन्वेंशनल एग्रेशन, नॉन स्टेट स्टेट। ट्रिप वायर डॉक्ट्रिन जो होता है, एनी टेररिस्ट अटैक ऑन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज अ कन्वेंशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, इफेक्टिवली प्लेसिंग द बर्डन ऑन पाकिस्तान टू प्रिवेंट सच अटैक्स। आप अपने देश को संभालिए। चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप, अगेन सीपीईसी जो भी वो देते जा रहे हैं उनको वही सारी चीज़ें हैं। टोटल एक्सटर्नल डेट ओ टू चाइना $68 बिलियन। भाई पूरे देश की इकोनॉमी आपने उनको पकड़ा दी है। डिफेंस कोलैबोरेशन, मल्टीलेटरलिज्म, ऑब्वियसली इंडिया को ब्लॉक करेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। फंक्शनलिस्ट अप्रोच लगाइए यहाँ पर, पीस बाय पीसेस, छोटी छोटी चीज़ों पे पहले काम कीजिए, फिर बड़े इश्यूज पे जाइए। कोफी आनंद, डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बट वही है, जब भी डायलॉग होता है वहाँ से अटैक होता है। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन स्पेशल, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अभी, क्योंकि इंडिया हैज टेकन अ रिन्यूड फ्रेश अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देख सकते हो। शेयर अ स्पेशल फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन टाइज ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर। फॉरेन मिनिस्टर, ये इस वजह से आई वाज टॉकिंग अबाउट इट। एंगेजमेंट विदाउट रिकग्निशन, लेकिन फिर भी हमने उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुला लिया। फ्रेंडशिप ट्रीटी था। इवैक्यूएशन ऑपरेशन देवी शक्ति, ये है वही जो क्लासिक स्टैटिक्स पोर्शन है। प्रमोटेड अफगानिस्तान इंक्लूजन इन सार्क, इस्तांबुल प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। $3 बिलियन ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेड है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, 200 करोड़ डेवलपमेंट एड में दिया हुआ है, $50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट है। अफगानिस्तान पार्लियामेंट, सलमा डैम, जारस देलाराम हाईवे, तापी प्रोजेक्ट, चावार प्रोजेक्ट, INSTC, कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी, फूड ग्रेन्स की इतनी डिलीवरी हम करते रहते हैं। फोकल पॉइंट ऑफ द ग्रेट गेम, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है उसकी। भाई हमें अपना इन्वेस्टमेंट बचाना है, वही ये सब सेम चीज़ है। यूएस के पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक बफर को खत्म करना है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ को खत्म करना है। तो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट। राइजिंग पाकिस्तान इन्फ्लुएंस, अब चैलेंजेस पोज्ड बाय तालिबान, राइजिंग पाकिस्तान इन्फ्लुएंस, बट ये भी अब शैटर होता जा रहा है, वो वहीं आपस में ही लड़ रहे हैं। जियो इकोनॉमिक, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लोबल टेरर आउटफिट्स, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, कनेक्टिविटी। शुड इंडिया रिकॉग्नाइज तालिबान, भाई इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब क्या ही है, रियलिज्म से बात करोगे तो हाँ, आइडियलिज्म की बात करोगे तो ना। तो इंडिया ने क्या बोला, एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन, बैलेंस। हर्ष पंत बोलते हैं बिल्डिंग ये कॉन्सेंसस एंड शिफ्ट थिएटर फ्रॉम कश्मीर टू अफगानिस्तान। तो कॉन्वर्सेशन ही शिफ्ट हो जाएगी, बट आई थिंक दिस कॉन्वर्सेशन इज शिफ्टिंग फ्रॉम कश्मीर टू POK, मच मोर बेनिफिशियल। लेवरेज हार्ट ऑफ एशिया, SCO, मॉस्को फॉर्मेट वगैरह वगैरह। नेपाल रिलेशन, अगेन भाई रोटी बेटी का रिश्ता है, पुण्य भूमि कर्म भूमि, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। चाइना आएगा बीच में, चाइना के साथ कंपटीशन है, उनके लोकल पॉलिटिशियंस हमें ब्लेम करेंगे, हम उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, सिंपल एज दैट। जयशंकर जी ने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका अपनाया था। उन्होंने बोला कि वी विल नॉट इंटरफेयर एंड वी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग यू से और डू। आप अपनी पॉलिटिक्स खुद संभालो, बिकॉज दे हैव दिस टेंडेंसी कि एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ करेगी जो पावर में है, ऑपोजिशन बोलेगा कि आप इंडिया के एजेंट हो। तो अब एंटी इंडिया सेंटिमेंट बनाने की कोशिश करते थे हमेशा। तो उन्होंने बोला कि हम आपको जो करना था हमने कर दिया, अब आप अपना देखो, सिंपल एज दैट। प्रिंसिपल डिस्टेंस। RBI permitted Indian banks to lend in INR to Nepali citizens, reduce currency volatility. MOU साइन किया वेस्ट सेती रिवर पे। मतलब बहुत ही सिंपल है यार ये तो।
उन्होंने अपना वही वो डाल दिया मैप पे, तीनों एरिया डाल दिया, काला पानी, लिपु लेक, लिम्पियादूरा, नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड वगैरह 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 वगैरह, 2/3 और नेपाल मर्चेंट इंडिया है, मोतिहारी लेकगंज, ये इंपॉर्टेंट है। बस ये की टर्म्स जरूर मेंशन कीजिएगा। अपर कर्नाली अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, मोतिहारी लेकगंज ऑयल पाइपलाइन, ये सब की टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टोटल ट्रेड उनका जितना होता है 64% इंडिया करता है। 10,000 मेगावाट हम इंपोर्ट करते हैं। कोसी एग्रीमेंट है, गंडक एग्रीमेंट है, तो उनकी वाटर रिवर्स को ठीक करता है, उनके वाटर को। BBIN BNS बिम्स्टेक, BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल वाला जो एग्रीमेंट था, बिम्स्टेक में है, नैम में है, सार्क में है, गोरखा रेजिमेंट में नेपालीज हैं। अच्छा, ये इसमें भी जो अग्निपथ वाला स्कीम आ गया था, अग्निवीर वाला, उसमें इशू आ गया था। जॉइंट एक्सरसाइज है। सिस्टर सिटीज, जनकपुर अयोध्या की बात कर रहे थे, काठमांडू वाराणसी की बात, मुंबई बोध गया, बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, दोनों से टूरिज्म बढ़ाया जा सकता है। पशुपति, मतलब वही इंडिया उनको डेवलपमेंट में हेल्प करता जाता है। जनरी प्रोटेस्ट हुए, बॉर्डर इशू रहा, वाटर शेयरिंग इशू रहा, अग्निपथ स्कीम का इशू रहा, ऑर्गेनाइज स्मगलिंग हुआ, इंसर्जेंट ग्रुप्स वहाँ पे रहते हैं, नेपाल चाइना से प्रॉक्सिमिटी, प्रोजेक्ट डिलेज, वही इश्यूज रहते हैं हर जगह पे। 2 पॉइंट रहते हैं, चाइना के साथ कंपटीशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन में डिले। उसका आइडियल रिस्पॉन्स आप वो डाल दिएगा जो जापान का मॉडल था, अगर आपको उसका सोल्यूशन लेना है बस। नेपाल स्टेट डेफिसिट इज 80% ऑफ GDP। कैसे करेंगे? बॉर्डर इशू डिपॉलिटिसाइज कीजिए, एनर्जी को ओनरशिप मॉडल, सब नेशनल डिप्लोमेसी, पैरा डिप्लोमेसी, अगेन वही आ गया, क्लाइमेट कोऑपरेशन, इनलैंड वाटरवेज, राजा मोहन, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। भूटान के साथ तो सब अच्छा ही अच्छा है। आई थिंक वी कैन मूव फास्ट हेयर। ये वाला जो था ना, इंडिया बैक भूटान 13 5 ईयर प्लान विच हैड प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स लाइक जलेफू माइंडफुलनेस सिटी। इसके ऊपर इंडिया ने बहुत हेल्प किया है। इट्स अ गुड थिंग फॉर देम ऑल्सो, कि उनके डेवलपमेंट में बहुत हेल्प हो जाएगा उन्हें। 40 बिलियन रुपीज का लाइन ऑफ क्रेडिट है। हर चीज़ में उनकी हेल्प करते हैं हम, हर चीज़ में, ट्रेड में, हेल्थ में, एजुकेशन में, ऑयल में, एनर्जी में, रिसोर्सेज में, फॉरेन पॉलिसी में, डिफेंस में, हर चीज़ में। बफर स्टेट है, डोकलाम प्लेटू इंपॉर्टेंट बनता है, टेक्निकल मिलिट्री एज बनता है, चाइना उसी को टारगेट करने की कोशिश करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए। जियो इकोनॉमिक, सेफ गार्डिंग इंडियाज इन्वेस्टमेंट, हर जगह आपने इन्वेस्ट किया है, सेफ गार्ड ही करोगे। लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स 25% उनकी GDP इसी से आती है, और 40% ऑफ रेवेन्यू वहीं से इंडिया ही दे रहा है उनको। ऑब्वियसली इट्स द ओनली कंट्री विच हैज नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, प्रेफर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कल्चरल एजुकेशनल टाइज है। बुद्धिस्ट सर्किट यहाँ पे भी डेवलप कर सकते हैं। चाइना इज एक्टिवली परसुइंग डिप्लोमेटिक टाइज इन बॉर्डर सेटलमेंट, डोकलाम डिलेमा है। वही चाइना का पैकेज डील है कि आप एक छोड़ देंगे दूसरा दे दो। इंडिया सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे कि ऐसा नहीं होगा। इकोनॉमिक परसेप्शन के इश्यूज है कि भाई इंडिया की वजह से आपका ग्रोथ हो रहा है, पर वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। हाइड्रो पावर फाइनेंसिंग कंसर्न्स, जो वहाँ पे 60-40 ग्रांट लोन मॉडल था, अब वो लोन हैवी बनता जा रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिलेज, स्मगलिंग हमेशा रहता है, नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट आउटफिट्स हमेशा रहते हैं, मतलब वही है, सेम चीज़ है। चाइना एंड भूटान हैव नॉट एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस। बाकी जो इश्यूज थे उनको ठीक कर दो, वे फॉरवर्ड। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, कल्चर डिप्लोमेसी, ट्रायलॉग विद चाइना वगैरह वगैरह वगैरह। वाटर मैनेजमेंट, इंडिया बांग्लादेश, रिसेंट में भाई इतना न्यूज़ में था, ये सब कुछ ही आपने पढ़ा है। कोई एक अच्छा सा, इंडिया बांग्लादेश शेयर नॉट ओनली अ बॉर्डर बट ऑल्सो इमोशंस, एक्सपीरियंस एंड विजन फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। इससे बेटर इंट्रोडक्शन मिल सकता है आपको। शेयर्ड विजन फॉर कनेक्टिविटी, कॉमर्स एंड कोलैबोरेशन, 2024 में जो साइन किया था, इसको इंट्रोडक्शन बना दो। हाँ, ये एक बेटर इंट्रोडक्शन है। PM रिसेंटली रेफर टू द करंट स्टेट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप एज सोनाली अध्याय, गोल्डन पीरियड। भाई बहुत बढ़िया, सब अच्छा अच्छा चल रहा है। नेबरहुड फर्स्ट का पिलर है, काउंटर बाई 2 स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, एक्ट ईस्ट का गेटवे है, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। LOC पे जो बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ आवर लाइन ऑफ क्रेडिट, $8 बिलियन। एनर्जी कॉर्पोरेशन है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कर लिया 2015 में। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट की टर्म्स यहाँ पे बनता है। अखौरा अगरतला रेल लिंक जो हमने वहाँ पे बनाया है। BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है। बिम्स्टेक सिनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, पीपल टू पीपल। चैलेंजेस में एक वो इंपॉर्टेंट इशू आएगा। रिसेंटली क्या किया था कि जो लैंड पोर्ट का एक्सेस देते थे हम बांग्लादेश को, वो हमने कैंसिल कर दिया था बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टेंशंस। तो वो एक मेजर चैलेंज आएगा, उसको आप शुरू में डाल सकते हो। शेख हसीना डाल देना, फिर वो डाल देना। वायलेंस अगेंस्ट हिंदू माइनॉरिटीज, एंटी इंडिया रेटोरिक, नॉन टेरर बैरियर्स, कनेक्टिविटी इशूज। तो यहाँ पर भी प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं होगा।
तीसरा रिवर वाटर डिस्प्यूट, कॉमन रिवर्स है, इलीगल माइग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, ये तो होता ही है हर जगह, जहां बॉर्डर होगा इलीगल इमाइग्रेशन होगा, टेररिज्म होगा, स्मगलिंग होगी। इंसर्जेंट ग्रुप्स ऐसी जगह बैठते हैं, चाइनीज इन्फ्लुएंस हमेशा बोला था। वे फॉरवर्ड क्या है, बेसिन वाइड रिवर मैनेजमेंट, जीरो फेटालिटी, कॉम्प्रिहेंसिव सीपा साइन कर लो, रीजनल सब नेशनल, यहाँ पे भी पैरा डिप्लोमेसी वाला पॉइंट आएगा वे फॉरवर्ड में, ट्रैक टू डिप्लोमेसी टॉकिंग अबाउट, क्लाइमेट कोऑपरेशन, म्यांमार के साथ, म्यांमार इज की टू एक्ट पॉलिसी ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, आसियान सेंट्रलिटी का एक मेजर पिलर बनता है म्यांमार। कलादान नियरिंग कंप्लीशन, एफएमआर स्क्रैप्ड, ऑपरेशन ब्रह्मा उनको सपोर्ट करने के लिए अर्थक्वेक में, इलेक्शन स्टैंस, ये एक इंपॉर्टेंट इशू था कि इंडिया, चाइना और रशिया इन्होंने जनता बैंक जो इलेक्शंस थे उनको सपोर्ट किया था, बाकी सब ने उनको डिसरिगार्ड किया था। नॉट दैट रेलेवेंट। साइबर स्लेवरी जो यहाँ पे मियावादी एरिया है, दैट अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इमर्जिंग इश्यूज हैं जिनको आपको ज्यादा हाईलाइट करना है कि भाई साइबर स्लेवरी हो रहा है वहां पे, फ्री मूवमेंट रिजीम को हमने स्क्रैप कर दिया वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंस ऑफ म्यांमार, आशियन का गेटवे, काउंटरिंग चाइना, नेबरहुड फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मतलब दीज आर वेरी वेरी सिमिलर टेम्पलेट, बस पॉइंटर्स अलग अलग है। इसको जितना फास्ट एक नजर मारोगे, बस एक की टर्म्स डाल लीजिएगा 8-10, उस आंसर में वो पॉइंट डालना। मूविंग अहेड ऑफ द बायलैटरल रिलेशंस, आई वांट टू डिस्कस समथिंग एल्स आल्सो, जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब रीजनल कोऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, ऑपरेशंस ऑन राइट नार्कोटिक्स, मतलब जस्ट गो थ्रू दिस वंस, इनफ। चैलेंजिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भाई गवर्नमेंट ही सही नहीं हो पा रही, रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, रोहिंग्यास वाला है, बॉर्डर इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, गोल्डन ट्राइंगल यहाँ बैठा हुआ है, चाइनीज इन्फ्लुएंस हर जगह रहता है, एफएमआर स्क्रैप कर दिया, साइबर स्लेवरी हब्स इन मियावादी रीजन, प्रोजेक्ट डिलेज है, अपग्रेडेड बॉर्डर इंफ्रा करो, मल्टी स्टेक होल्डर, जो भी प्रॉब्लम है सब ठीक कर दो, डोमेस्टिक रिफ्यूजी पॉलिसी बना दो, भाई कितना हैंडल करोगे, सिक्योरिटी को ऑपरेशन कर लो, ट्राइलेटरल हाईवे बढ़िया, इसको एक्सटेंड कर दो, आईएमटी है ना, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इसको और आगे ले जाओ, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ले जाओ, वर्किंग विद लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक जापान, इंडिया, श्रीलंका, पिलर ऑफ नेबरहुड फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो इंडिया ने किए थे। पहला तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग सपोर्ट दिया था, सागर बंधु ऑपरेशन किया था, आईएमएफ की जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग थी उसमें भी इंडिया ने बहुत प्रोएक्टिवली श्रीलंका के लिए लॉबी किया था, तो दैट हैज हेल्प श्रीलंका अलॉट। ट्रिंकोमली एनर्जी हब उन्होंने दे दिया इंडिया, यूएई, श्रीलंका को ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में, 100 मिलियन लोन्स कन्वर्टेड टू ग्रांट्स, की प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हो गए। ये वाला अच्छा था कल्चरल डिप्लोमेसी में, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट सिनलीज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ट्रांसफर ऑफ लॉर्ड बुद्धा रिलेट्स टू बेसिक फॉर बेसिक सेलिब्रेशंस। इंपॉर्टेंस ऑफ श्रीलंका, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, काउंटरिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, नेबरहुड फर्स्ट, वही है भाई, आपके सारे नेबर के आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रेड करोगे, बाउंड्रीज स्टेबिलिटी लाओगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, जियोपॉलिटिक्स में वो आपको सपोर्ट करेंगे, मल्टीलेटरल ग्रुपिंग में आपको सपोर्ट करेंगे, आपका डायस्पोरा का एक्सचेंज बहुत अच्छा रहेगा, बॉर्डर स्टेबल रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कनेक्टिविटी रहेगी, कल्चरल एक्सचेंज रहेगा, वही सारे पॉइंटर्स हैं, सिविलाइज कल्चरल एक्सचेंजेस, देखते ना, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम चीज है, सारी सेम चीजें हैं। चैलेंजेस, चाइना आएगा, कच्चा तीबू इशू आया था, तमिल एथनिक इशू जो सिन्हलीज मेजोरिटी और तमिल माइनॉरिटी का इशू आया था, डेट डिप्लोमेसी चाइना ने खेला, फिशरमैन डिस्प्यूट हमेशा रहता है इनके साथ, त्रिनकोमल्ली, और जो उन्होंने पोर्ट्स दे दिए थे चाइना को लीज पर, वो भी एक इशू बन जाएगा, इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी का इशू है, कल्चरल सेंसिटिविटीज एक इशू है, वे फॉरवर्ड जो खराब है सब ठीक कर दो, तमिल रिकन्सिलिएशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रामायण एंड बुद्धिस्ट सर्किस्ट। अब आप इसको नेपाल के साथ भी कर रहे हो, भूटान के साथ भी कर रहे हो, श्रीलंका के साथ भी कर रहे हो, बांग्लादेश के साथ भी कर सकते हो, सिंपल एज दैट। डेवलपमेंट डिप्लोमेसी करना ही होता है, नेबर्स फर्स्ट पार्टनर्स फॉरएवर। मालदीव्स पे आई थिंक अभी वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला गया है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट विल टेक अ लुक। अच्छा, द बोर्ड वांट्स मी टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू इट, ओके अंडरस्टूड। Vision for Comprehensive Economic Maritime Security Partnership adopted in 2025-26, which talks about India's extended support of $400 million financial package along with a currency swap agreement of 30 billion rupees. Infra push है, फिशरीज कॉपरेशन एग्रीमेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव, फिर से वही इंपॉर्टेंस होगा, कोई भी नेबर है उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, जियो इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, डायस्पोरा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, गुडविल मिलेगा, ऑपरेशन संजीवनी किया, इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए बस ये पॉइंटर्स आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड इनका 50% है,
80% ऑफ एनर्जी इंपोर्ट्स ट्रांजिट थ्रू दो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें मालदीव बैठता है। तो बेसिकली वो ईस्टर्न इंडियन ओशन और वेस्टर्न इंडियन ओशन के बीच में बैठता है, तो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टोल गेट बिटवीन चोक पॉइंट्स बिटवीन गल्फ ऑफ एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। एमओयू विद मालदीव, ऑपरेशन संजीवनी में कोविड वैक्सीन पहुंचाई थी। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में ऑपरेशन नीर पहुंचाया था। लैंडिंग असॉल्ट यूटिलिटी व्हीकल सब हम उनको देते रहते हैं। इंडिया आउट कैंपेन, चैलेंजेस वही था, चाइना आ गया, इंडिया आउट हो गया, फिजिकल फ्रेजिलिटी हो गई, रेडिकलाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल, इसमें वो भी डाल सकते हो कि मिनिस्ट्रियल जो बैकलैश हुआ था कि मिनिस्टर ने इंडिया के अगेंस्ट कमेंट कर दिया था, फिर उसी के अगेंस्ट बैकलैश हो गया था बहुत सारा, तो उसको ठीक करने की कोशिश की थी उन्होंने। कैंसिलेशन ऑफ हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट वगैरह वगैरह। एफटीए करो, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स बट शेयर वाटर्स मेक बेटर पार्टनर्स। वेरी गुड कंक्लूजन, कहीं भी लिख देना इसे। इंडिया इन द रीजनल रिलेशंस, अच्छा वेस्ट एशिया के साथ जो इनके रिलेशन थे, मतलब इसमें इन्होंने मेनली सारे जो मेजर मेजर रीजन्स हैं उनके साथ किया है, बट आई थिंक वी विल कम बैक टू दिस we'll come back to the major regions also, but I want to discuss something else that is more important. India Iran, India Israel, India Africa, Latin America, वो यहीं पर आएगा। Central Asia, Nordic, Pacific, multilateral institutions। तो we'll finish this पहले, और उसके बाद जो miscellaneous वाले हैं that I want to discuss। UN, सिंपल भाई, यूएन ने क्या किया क्या इश्यूज रहे हैं, कैसे इंप्रूव करना है। यूएनएटी रिफॉर्म रोड मैप, पैक्ट फॉर द फ्यूचर, क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड, जो रीसेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पर हुए हैं। मेजर अचीवमेंट भाई ये तो नहीं आने वाला, ये तो यूएन के अचीवमेंट पूछने लगा तो फिर क्या। वॉर नहीं हुआ, डिजीज हटा दिए, डीकोलोनाइजेशन, हंगरी कोई नहीं है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की वजह से, एनवायरमेंटल पैक्ट, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, रेफ्यूजी प्रोटेक्शन, प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी, यही सारे इसके क्रिटिसिज्म्स हैं। एक भी काम ठीक से नहीं किया। इश्यूज, सिक्योरिटी काउंसिल पैरालिसिस, मॉनिटरी क्राइसिस, आउटडेटेड रिप्रेजेंटेशन, पीस कीपिंग नहीं हो रहा है, मिनीलिटरलिज्म का राइज हो रहा है, एआई टेक गैप्स आ गए, जेंडर इनइक्वालिटी, रेड टेप, ह्यूमन राइट्स, इरोजन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, सब वही है। इंडिया के यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप, दिस बिकम्स अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ। पहला तो रिप्रेजेंटेटिव लेजिटिमेसी है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, पीस कीपिंग लीडरशिप में इंडिया सबसे एक्टिव काम करता है, ओरिजिनल सिग्नेटरी है, G20, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जैसे समिट्स को किया है, न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल पावर है, तो इंडिया बिकम्स द मेजर एंड द मोस्ट आइडियल कैंडिडेट फॉर इंक्लूजन इन द यूएनएससी। मेजर चैलेंजेस, वीटो, स्टेलमेट, कॉफी क्लब, न्यूक्लियर नॉन सिग्नेटरी स्टेटस। चाइना का हिडन वीटो हमेशा रहता ही है, वो तो रहेगा ही। अफ्रीकन सॉलिडारिटी, रिजोल्विनी कंसेंसस ये है कि भाई आप ठीक है उनको दे दो, और 2 सीट समय भी दे दो अलॉन्ग विथ वीटो, तो वो इशू बन जाता है G4 के लिए। जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंसेस है, वीटो पावर डिलेमा। की रिफॉर्म्स, एक्सपेंशन, ट्रेडिशनल पीस कीपिंग से पीस इन्फोर्समेंट पे जाइए। इंडिया एंड G20, आई थिंक इस पर क्वेश्चन आ चुका है, तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट ग्लांस थ्रू इट। एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, G20 क्रिटिकल मिनरल्स आउटलुक, जेंडर इक्वालिटी वगैरह वगैरह, ग्लोबल साउथ वेस्ट, डेट सस्टेनेबिलिटी, अफ्रीका को इसमें हमने इंक्लूड किया था। क्राइसिस रिस्पॉन्स, पैंडेमिक रिकवरी, मेजर इश्यूज, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन, नॉन बाइंडिंग नेचर, इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसमें एक वो चीज ट्रॉयका वाली जो चीज होती है ना, उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत है। वे फॉरवर्ड फॉर G20, एम्पावर द ट्रॉयका, ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, परमानेंट सेक्रेटेरिएट, रिवाइटलाइज मल्टीलैटरलिज्म। तो वही है, मल्टी से मिनी की तरफ जितना जाते जाएंगे उतना बोलेंगे कि मल्टी को बेटर करो, पर वो काम नहीं कर रहे। WTO डिफंक्ट पड़ा हुआ है just because of one member. So this becomes an important question where they might ask about the meetings and the important issues here. Fisheries is one important issue जहाँ पर सेकंड फेज ऑफ एग्रीमेंट चल रहा है। इसमें तो उन्होंने सिर्फ रिसेंट वाला दिया हुआ है। फिशरीज में वो जो सब्सिडीज देते हैं उसके ऊपर इशू है, ओवर फिशिंग के ऊपर, अनरेगुलेटेड फिशिंग के ऊपर इशू है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट के ऊपर इशू है, इनकॉर्पोरेशन में इशू है, ई कॉमर्स मॉरेटोरियम पड़ा हुआ है कि भाई उनसे, इंडिया बोलता है कि हम उनसे टैक्स लेना चाहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज बोलती हैं कि आप मत लीजिए। एग्रीकल्चर का डेडलॉक पड़ा हुआ है, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, ट्रिप सेफगार्ड अगेंस्ट नॉन वायलेशन कंप्लेंट्स, लैप्स ऑफ ट्रिप सेफगार्ड वो वहाँ पे खत्म हो रहा है, लीज डेवलपिंग कंट्रीज का इशू है। तो इतना डिटेल में आई थिंक इस वाले में मत जाइए। कोर फंक्शंस उसके वही है, डिस्प्यूट सेटलमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेड नेगोशिएशन, बिल्डिंग ट्रेड कैपेसिटी, ये डिफंक्ट पड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर,
मेजर अग्रीमेंट्स, मतलब आप एक बार इस पे नजर मार लोगे ना, दैट वुड बी एनफ। आप इसको पूरा पूरा पढ़ने बैठोगे, याद करने बैठोगे तो। मेजर इश्यूज फेस्ड बाय डब्ल्यूटीओ: appellate body paralysis, negotiation deadlock, MFN principal erosion, outdated rule book, power asymmetry, geopolitical rivalries, green protectionism। वही है यार, मतलब just glance through it once। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, भाई इसका तो क्या ही होता है, एक एक पर्सन को वो कन्विक्ट करते हैं और फिर बाकी कंट्रीज को बोलते हैं जाओ इनको अपने कंट्री में आने मत दो, ये मत करने दो, ऐसा थोड़ी होता है। वाई इंडिया डिड नॉट जॉइन द रोम स्टैट्यूट, ठीक है, अगर आप आईसीसी एक बार देखना चाहते हो तो देख लो, अदरवाइज बेटर ये होगा कि आप आईसीजे पढ़ो। कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट, 1945 बना, 15 जजेस का होता है टेन्योर, 9 ईयर का टेन्योर होता है, 15 जजेस होते हैं। इंडिया के जस्टिस दलवीर भंडारी हैं, 2018 से बैठे हुए हैं, सेकेंड टर्म सर्व कर रहे हैं अपना। सर जी अगर आपकी आज्ञा हो तो आगे बढ़े। मैंडेट: कंटेंशियस ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब वही है कि वो लीगल डिस्प्यूट वगैरह सेटल करते हैं जो कंट्रीज उनके पास ले जाती हैं। मेजर अचीवमेंट: पीसफुल सेटलमेंट, इंटरनेशनल लॉ को क्लैरिफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं ह्यूमन राइट्स को, मैरीटाइम बाउंड्री डिलिमिटेशन देते हैं, जिसमें सोमालिया वर्सेस केन्या का एग्जांपल है। ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशन में म्यांमार वर्सेस गामीबिया, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज का इशू आया था। कॉन्सुलर एक्सेस राइट्स टू कुलभूषण जाधव, जो इंडिया को प्रोवाइड किया था। डीकोलोनाइजेशन कैटेगलिस्ट, जो शागोज आर्कीपेलागो वापस से उनको दे दिया है यूके ने, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट यार। एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस इंस्ट्रूमेंटल, मतलब ठीक है, जितने पॉइंटर्स आप याद कर सको इसमें ठीक है, अदरवाइज जस्ट ग्लांस थ्रू देम। मेजर इश्यूज वही होगा कि भाई कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, एनफोर्समेंट गैप है, हर यूएन एजेंसी का एनफोर्समेंट गैप का इशू बनता है। लेंदी लिटिगेशन साइकिल, पॉलिटिसाइज नॉमिनेशंस, रिसोर्स इनलेगेसी वगैरह वगैरह। ऑप्शनल क्लॉज डिक्लेरेशंस, वीटो रिफॉर्म, जो भी खराब है ठीक कर दो। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, आसियान, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, आसियान सेंट्रलिटी की हम बात कर रहे थे ना, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन टू एनहांस कोलैबोरेशन ऑन द ब्लू इकोनॉमी 2026, इसको आप इंट्रोडक्शन बनाइएगा। इंडियाज कमिटमेंट टू सेंट्रलिटी, यूनिटी एंड आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, इसमें जापान आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, इंडिया आएगा, यूएस आएगा, बिकॉज आसियान बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। इंडिया के दो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, कलादान और इंडिया आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे, मास्टर प्लान ऑन एशियन कनेक्टिविटी, ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशंस, वही टेम्पलेट सब वही फिट कीजिए। रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल फोरम, मैरीटाइम वाला एंगल इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, बहुत ट्रेड है, बहुत डेफिसिट है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर बैलेंस टू चाइना, कनेक्टिविटी हब है। फूड सिक्योरिटी, इसमें साइबर स्लेवरी वाला एंगल भी डाल सकते हो। कल्चरल सॉफ्ट पावर, डिफेंस कोऑपरेशन, ग्लोबल गवर्नेंस, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। Simple repeated points, just glance through it once, that's it. Myanmar crisis, ASEAN way of being too wary of India being too closely aligned with the Quad. जो ट्रेड एग्रीमेंट था उसमें हम उसको रिव्यू कर रहे हैं बिकॉज वी फील कि वो फेयर नहीं था। इकोनॉमिक डोमिनेंस चाइना का हर जगह रहता है भाई। आसियान फ्रैक्चर्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, प्लान ऑफ एक्शन, वही जो IPOI है, मतलब बेसिकली अगर वो जहां लोकेटेड है उसके आसपास के इश्यूज के ऊपर ही तो वो बनाएगा। अपग्रेड कीजिए फ्रॉम एक्टिस पॉलिसी टू एक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, तो दो चार पॉइंटर्स ही लिखने हैं आपको। मॉडर्नाइज कीजिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जिसका रिव्यू चल रहा है। स्ट्रेंथन द मैरीटाइम प्लेयर, ब्रिज द RCEP कैप, RCEP से हम बैकआउट कर गए थे तो उसको ब्रिज करने की बात करते हैं। क्वाड, क्वाड के बेसिक फ्रेमवर्क में क्या बनता है? क्वाड का बेसिक फ्रेमवर्क बनता है कि क्यों बना, कैसे इवॉल्व किया, क्या क्या उसके डायमेंशंस हैं, क्या क्या उसके पैरेलल्स हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं। इश्यूज में वही आएगा, रशिया को प्रॉब्लम है, आसियान को प्रॉब्लम है, इंडिया उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, 4 पिलर बनाए थे उसमें इंडिया ट्रेड को ज्वाइन नहीं कर रहा है, वही सारे इश्यूज हैं। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी पोजिशंस, क्वाड एज अ फोर्स फॉर गुड वगैरह वगैरह, बहुत सारा लिंगो है इसमें। लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, इस वाले पे अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो बना लेना क्योंकि बहुत काम आएगा।
focus on semiconductors, resilient supply chain, cyber security, quad information sharing network, launch of QChamp, क्वाड कैंसर मूनशॉट, मतलब वही सारी चीजें यहाँ पर रहती है. सिग्निफिकेंस, हर चीज काउंटर बैलेंस टू चाइना, मैरीटाइम स्पेस, रूल बेस्ड ऑर्डर, ग्लोबल फोर्स फॉर गुड, SCRI, टेक सेटिंग, क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप, ब्लू डॉट नेटवर्क में जो कमिटमेंट्स दिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ इनिशिएटिव्स, क्वाड प्लस एंगेजमेंट, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, कैंसर मूनशॉट, फेलोशिप, डेट मैनेजमेंट. चाइना जहां जहां कंसर्न बना रहा है, क्वाड उसको एड्रेस कर रहा है. सिंपल ऐसे. मेजर चैलेंजेस, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है, सब बिखरा पड़ा रहता है. डाइवर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट, आशियान कंसर्न्स ओवर कंटिन्यूटी, वो बोलते हैं एशियन नेटो का परसेप्शन है, बीजिंग चाइना बोलता है. इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन चाइना सबकी बनी हुई है, तो फिर आपसे काउंटर कैसे करोगे? इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इशू बन जाती है. क्या ठीक करोगे? इन्हीं को ठीक करोगे. क्लियर पैसिफिक स्ट्रेटजी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, बियॉन्ड एंटी चाइना, फॉर्मलाइज मैरीटाइम, इंस्टीट्यूशनलाइज, स्ट्रेंथन क्वाड प्लस एंगेजमेंट, जिसमें कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उन सबको ला रहे हो आप, तो उसको एंगेजमेंट स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो. रिसोर्स कमिटमेंट, बिम्स्टेक, सार्क जो नहीं कर पाया बिम्स्टेक वो करेगा. सिर्फ पॉइंटर्स उठाइए, की टर्म्स उठाइए, सब्सटेंशिएटिंग डेटा यहाँ से उठाइए, बाकी इस पे डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है कि ओरिजिन ये हुआ, ये सब हुआ. मतलब बस दो पॉइंटर्स. 4% ऑफ जीडीपी, 4.5% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. 6 समिट बैंकॉक में हुआ था. ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट, ऑपरेशन ब्रह्मा जो इंडिया ने किया था म्यांमार के लिए, यूथ हेरिटेज प्रोग्राम, बस. फंक्शनल प्लेटफॉर्म फॉर साउथ एशिया. अब ये मतलब इसमें थोड़ी ना याद करने की चीज़ है, ये तो आपको पता ही है. सार्क नहीं काम कर रहा है, इसलिए बिम्स्टेक काम कर रहा है. मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ब्लू इकोनॉमी, लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट टू सी थ्रू नेबर्स कनेक्ट करेगा, डिजास्टर रेजिलियंस, कल्चरल कनेक्टिविटी, पब्लिक हेल्थ कोऑपरेशन. इशूज क्या क्या है? बायलैटरल टेंशन है भाई, आपस में लगे पड़े हैं. लैक ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंडिया बहुत बड़ा है, इम्प्लीमेंटेशन डिलेस हर जगह होती है. Domestic political instability, China's overwhelming influence, stalled FTA, asymmetry in size, geographical disconnect. इनिशिएटिव क्या है? बैंकॉक विजन, बिम्स्टेक मास्टर प्लान, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर. बस ये 4 पॉइंट उठा के आपको आंसर में डालने हैं. बस इस पूरी पीडीएफ का इतना ही काम है, इस मतलब बिम्स्टेक का इतना ही काम है. इसमें से क्या वे फॉरवर्ड करोगे? सब कुछ जो खराब है वो ठीक करोगे. सार्क, ये तो पूरा ही खराब पड़ा है, इसको कितना ठीक करोगे? सार्क में 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे बनते हैं, जो की पॉइंट बनते हैं, वो आई टेल यू. जैसे पहले तो ये सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है. कोविड-19 इमरजेंसी फंड, इसको एक्टिव किया गया था. BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, पाकिस्तान ने इसको खराब कर दिया. सार्क करेंसी स्वैप है. ये कुछ पॉइंटर्स बनते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. वे फॉरवर्ड में मेंबर -1, ये हर जगह पे आप यही करोगे. यूएस किसी बॉडी को खराब कर रहा है, मेंबर -1. भाई उसके बिना भी तो बॉडी चल सकती है ना, आप उसको चलाओ. फंक्शनलिज्म, सब रीजनलिज्म, वही पैरा डिप्लोमेसी, वही रिपीटेड चीज है. ब्रिक्स बिकम इंपॉर्टेंट. बेसिक इंट्रोडक्शन, जिम ओनील आ जाएंगे यहाँ पर, गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट. एक्सपेंशन, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, ईरान, यूएई एंड इंडोनेशिया. सऊदी भी आया है बट नुआंस रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है. ये याद कर लीजिएगा. पॉपुलेशन 45%, जीडीपी 37%, ऑयल प्रोडक्शन 42%. इंडिया ने रिसेंटली प्रेसिडेंसी ली हुई है, जिसमें उन्होंने ब्रिक्स के ही एक्रोनियम को यूज करके अपना थीम बना दिया है. बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. ब्रिक्स में 2-3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं. पहला, डी डॉलराइजेशन, प्रेजेंटिंग ब्रिक्स एज अ नॉन वेस्टर्न ब्लॉक एंड नॉट एन एंटी वेस्टर्न ब्लॉक. ये बहुत इशू इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है. और तीसरा आता है इसमें जो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, CRA. वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, ऑल्टरनेटिव टू ये है. ड्यू डॉलराइजेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वगैरह वगैरह. ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एंड सेफ्टी नेट, द कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट. ये 3-4 की टर्म्स ब्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आंसर में डालने होते हैं. मेजर इशूज, लिमिटेशंस क्या क्या हैं? चाइना बेलारूस को लाने की कोशिश करता है, प्रो चाइना बनाने की कोशिश करता है ग्रुप को. इंटरनल राइवलरीज बनी हुई हैं. डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम, कहीं डेमोक्रेसी कहीं ऑथोरिटेरियनिज्म. एक्सपेंशन कॉम्प्लेक्सिटी है कि भाई ब्रिक्स प्लस को आप बिल्कुल टॉकिंग शॉप बना दोगे, वो उस काम की नहीं रहेगी. स्लो डी डॉलराइजेशन, इस पर ट्रंप का बहुत रेटोरिक रहा है कि भाई नहीं करने देंगे. इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, सैंक्शन ऑन रशिया, लो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, आपस में आप ट्रेड नहीं कर रहे हो वगैरह वगैरह. एनडीबी, यस, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ब्रिक्स पे, ब्रिक्स वैक्सीन.
ब्रिक्स स्पेस काउंसिल, ब्रिक्स पार्टनर, न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये की पॉइंटर्स हैं जो ब्रिक्स अच्छा काम कर रहा है. वे फॉरवर्ड क्या है? इट डज नॉट बिकम एन एंटी वेस्ट ब्लॉक बट अ प्रो ग्लोबल साउथ एडवोकेट. मतलब ग्लोबल साउथ का एडवोकेट बना लीजिए या फिर उसे नॉन वेस्टर्न ब्लॉक बना लीजिए, दोनों ही केस में बस उसे एंटी वेस्ट मत बनाइए. इंस्टीट्यूशनलाइज एनडीबी, स्ट्रेंथन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन करेगा? इंडिया. फोकस ऑन लो आएंगे भाई, हर जगह फंक्शनलिस्ट अप्रोच. एससीओ में इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट एज मेंबर इन 2017. अगेन वही 4-5 चीजें यहाँ से उठा लीजिए. तियानजन डिक्लेरेशन, इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आया था शायद एससीओ का प्रीलिम्स में. सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, मल्टीपोलैरिटी, इकोनॉमिक ऑपरेशन. सिग्निफिकेंस क्या है? गेटवे टू सेंट्रल एशिया, काउंटर टेररिज्म प्लेटफॉर्म, एनर्जी सिक्योरिटी हब है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, कॉन स्टेबिलिटी बनता है. सेंट्रल एशिया मतलब सब कुछ कनेक्ट करता है, एनर्जी है, कनेक्टिविटी है, रीजनल स्टेबिलिटी है. चाइना का बैकयार्ड है, रशिया का बैकयार्ड है, यूएस वहाँ पे इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, इंडिया वहाँ पे अपना प्रेजेंस बनाने की कोशिश करता है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग है. मार्केट एक्सेस आप उनको प्रोवाइड करो. चैलेंजेस क्या है? एक्सपेंशन डिलेमा है, चाइनीज हेजेमनी है, कंसेंसस कंस्ट्रेंट्स हैं कि भाई एक ने जो बोल दिया वही होगा. इंक्रीजिंगली सीन एज एंटी वेस्ट, साइनो रशियन एक्सेस बैठा हुआ है वहां पर, काम नहीं करने देते. मेजर इनिशिएटिव बस ये 4-5 चीजें, इतना ही उठाना है आपको एससीओ में से. रेट्स, स्टार्टअप, यंग साइंटिस्ट, बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड एनर्जी क्लब, इसमें इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हो वहाँ पे. तो कीप दीज पॉइंटर्स एज अ टेम्पलेट, उसमें ये कीवर्ड्स फिट करना है और उनको सब्सटेंशिएट करना है, दैट्स इट. सारे आईआर में यही करना है. 4 क्वेश्चन आने वाले हैं. टेक्निकल प्लेटफॉर्म रादर देन रोमेंस. आर्कटिक काउंसिल पे आ सकता है. ओटावा डिक्लेरेशन, आर्कटिक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी, वहां से बना है. आर्कटिक 7 जो है उन्होंने रशिया से हटा दिया है ऑपरेशन. इंडिया एक ऑब्जर्वर स्टेट है अलॉन्ग विद अदर 12. इंडिया हिमाद्री चलाता है, इंडार्क चलाता है. सिग्निफिकेंस क्या क्या होगा? मॉनसून कोरिलेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, साइंटिफिक डिप्लोमेसी, मिनरल वेल्थ. स्टैंडर्ड पॉइंटर्स, ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट, स्ट्रेटजिक पोजिशनिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग, जियोपॉलिटिकल फ्रैक्चर, मिलिट्री सिक्योरिटी एक्सपेंशन, एक्सक्लूजन. डिफरेंट चैलेंजेस वही है भाई. ऑब्जर्वर को काम नहीं करने दोगे, चाइना अपने आप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा. मेजर इनिशिएटिव्स बाय इंडिया, एक ये इंपॉर्टेंट है आर्कटिक पॉलिसी, फर्स्ट विंटर एक्सपेडिशन इंपॉर्टेंट है, पोलर रिसर्च कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट, सॉल्वर ट्रीटी लेगेसी इंपॉर्टेंट है. 4-5 पॉइंटर्स यहाँ से. डाइवर्सिफाई पार्टनरशिप, आईएनएसटीसी में ऐड कर दो उसे. जो कर सकते हो दुनिया में सब कर दो, बस इम्प्लीमेंट मत करो. International policies. Okay, I'm not going to discuss this a lot because these are policies and diplomatic initiatives which have been taken by India, but these are not asked as such. तो बहुत ही मतलब स्टैटिक चीजें हैं इसमें. यू कैन जस्ट गो थ्रू देम वंस. आई विल नॉट डिस्कस दिस. पहला इसमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि, संस्कृति, 5S. इसमें आप जितने भी पॉइंटर्स डाल लेना वो आप नेबरहुड के पॉइंटर्स में पढ़ चुके हो. हर एक से 2-2 पॉइंट उठाओ, चिपका दो, सिंपल इज दैट. इसकी जो फिलोसफी, अब रेलेवेंस ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भाई, अगर आप ये भी पढ़ने लगे, याद करने लगे तो फिर क्या फायदा. चैलेंजेस, बिग ब्रदर नेपाल के साथ, चाइना चेकमुक सबके साथ, प्रोजेक्ट डिलीवरी डेफिसिट सबके साथ है, पाकिस्तान डेडलॉक है ही, डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्पिल ओवर होता है, इंडियन इंटरनल स्टेट इंडियन पॉलिटिक्स, वेस्ट बंगाल तमिलनाडु वाला जो होता है, कार्टोग्राफिक एग्रेशन नेपाल, रिफ्यूजी क्राइसिस बांग्लादेश म्यांमार, लो इंटर रीजनल ट्रेड सार्क, रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश. नेबरहुड से पॉइंट उठाइए, यहाँ पे डालिए, सिंपल एज दैट. सार्क के, बिम्स्टेक के पॉइंट यूज कीजिए. एक्ट ईस्ट में आसियान के, म्यांमार के पॉइंट यूज कीजिए. अलग से जितना कम याद करने को मिलेगा उतना बेटर आप रिफ्लेक्ट बैक कर पाओगे. बस ये 4 इनके याद कर लेना. कॉमर्स, कल्चर, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, बस इतना ही काफी है. म्यांमार के और आसियान के पॉइंट्स आप एक्ट ईस्ट में डाल दीजिए. लोग ईस्ट से एक्ट ईस्ट पे चले गए. अब ये गेट वेट हमने पढ़ा तो है सारा, इसलिए डोंट गो टू मच. म्यांमार इंस्टेबिलिटी, चाइनीज, ये सब वही रिपीटेड चीजें हैं. उसी नॉलेज को आप यूज कीजिए. इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पढ़ा, यूएस के साथ जो पढ़ा, आसियान के साथ जो पढ़ा, तीनों यहाँ पे यूज. बस ये वाला, और जापान के साथ जो पढ़ा, पूरा क्वाड में जो पढ़ा यहीं पर आएगा. बस उसी को आपको इंक्लूड करना है इसमें. वही सारे पॉइंट्स हैं. क्वाड, आई सेड डिप्लोमेटिक, ब्लू इकोनॉमी, वही सारे पॉइंट्स रिपीट है.
अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। मिसलेनियस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी तो चलो कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है। योगा है, बुद्धिस्ट है, कल्चरल डिप्लोमेसी है, दिवाली है, ये सब चीजें इसमें आएंगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच आई फाउंड वेरी रेलिवेंट हियर, डायस्पोरा इज अगेन। बहुत ही, चलो ठीक है, इसको तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, डायरेक्ट मेंशन है। 35 मिलियन का है, रेमिटांस इतना आता है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हम लीड करते हैं। सिग्निफिकेंस, अब ये तो अब समझो ही ना, इसमें तो इकोनॉमिक पावर हाउस बनता है, पॉलिटिकल क्लाउड बनती है, लॉबिंग करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बनती है, ब्रिज बिल्डर्स हैं, कल्चरल एम्बेसडर्स है, फिलैंथ्रोपी करता है। चैलेंजेस, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, हेट क्राइम बढ़ रहा है, रेशियली मोटिवेटेड अटैक्स बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, रेमिटेंस कम होगा, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये इंपॉर्टेंट बनता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस, ओसीआई कार्ड, मदद पोर्टल, नो इंडिया प्रोग्राम और प्रवासी कौशल विकास योजना। बस ये पॉइंटर्स आपको 4-5 डालने, दैट्स इट। जीसीसी, अब ये तो सब होता रहेगा। ऑपरेशन कावेरी, लार्ज स्केल इवैक्यूएशन, आपने अब कितने सारे पढ़े हुए हैं पीछे। एनर्जी डिप्लोमेसी, वेस्ट एशिया के साथ जो कुछ पढ़ा, चलो विल गो बैक टू दैट सेक्शन ऑल्सो, उसको रैप अप करेंगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। इसमें उन्होंने 4 प्लेयर खोले थे। पहला जो रियलिज्म वाला है, फॉसिल फ्यूल, ग्रीन लीडरशिप, आईएसए, हाइड्रोजन डिप्लोमेसी, इसमें हम नीदरलैंड्स और बेल्जियम के साथ, नॉर्वे के साथ काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिवाइवल पिलर, जो रशिया के साथ काम हो रहा है और फ्रांस के साथ काम हो रहा है, जैतापुर और कुडनकुलम। ग्लोबल बायोफ्यूल, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, डिजास्टर डिप्लोमेसी, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार, नेपाल को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, सीरिया को सपोर्ट किया, टर्की को सपोर्ट किया। इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में जो भी हमने किया वो सब यही तो था, डिजास्टर डिप्लोमेसी ही तो है वो। वैक्सीन प्रोवाइड की कोविड के टाइम पे, वो डिजास्टर डिप्लोमेसी है। वो तो वैक्सीन तो आप ये कल हम अफगानिस्तान को भी लिखी है हमने उन्हें भी वैक्सीन प्रोवाइड की, वो भी तो डिजास्टर डिप्लोमेसी है। क्वाड, एचओडीआर गाइडलाइंस, हाइपर लोकल वार्निंग सिस्टम्स, सब सेम है। ये इंपॉर्टेंट है इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इस टाइप का क्वेश्चन 2025 में बना था, दैट it is the ability of a nation to pursue its national interest in independent foreign policy positions without being constrained by formal military alliance or external coercion. India is trying to achieve this. इसका एक अच्छा इंट्रोडक्शन ये बन सकता है, strategic autonomy is not about fence sitting. It is a deliberate method to navigate contested arenas on our own terms. Quote by Syed Akbaruddin. Will not go in the background of it. Key pillars: principal stance, sovereign decision making, आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिफेंस इंपोर्ट्स। सब्सटेंशिएशन आपको सबका याद है, ये रशिया करेगा, ये इंडिया कर रहा है। सॉवरेन डिसीजन मेकिंग, हम इंडिया, यूएस रशिया चाइना को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल स्टैंड ऑन ग्लोबल इशूज, इसमें आप क्लाइमेट जस्टिस बोल सकते हो, टेररिज्म बोल सकते हो, विमेन राइट्स बोल सकते हो। मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी जो हम कर रहे हैं, डेटा सॉवरेनिटी के जो कंसर्न्स है। अब इसका भी सिग्निफिकेंस अगर बताना पड़ेगा क्या, significance of strategic autonomy, autonomous decision making without being pressured by anyone, simple as that. Safeguarding diaspora, major challenges, bipolarity, defense dependency, secondary US sanctions, China, हर जगह चाइना, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी का कम होना, जो हमने आईएफएस की बात की थी फर्स्ट चैप्टर में। वे फॉरवर्ड है, उन्हीं सबको ठीक करो। हेज वाया यूनिलैटरल्स, रिकैलिब्रेट चाइना टाइज, इंस्टीट्यूशनलाइज फॉरेन पॉलिसी, एम्पावर द डायस्पोरा। टेक डिप्लोमेसी, डीपीआई की जो हम बात करते हैं, इसका एक इंट्रोडक्शन अच्छा ये वाला है। इंडियाज डीपीआई इज नॉट जस्ट अ डोमेस्टिक सक्सेस, इट इज अ डिप्लोमेटिक ब्रिज टू द ग्लोबल साउथ। आईसैट रीब्रांडेड एज ट्रस्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने इतना प्लान। टेक डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, ये इंडिया की बहुत ही इमर्जिंग डायमेंशंस हैं। यूपीआई सरपास्ड वीजा एंड डिजिटल पेमेंट्स इन 2025। की पिलर्स, इंडिया स्टैक, critical minerals, space, semiconductor, cyber, human capital. Significance of tech diplomacy, global south leadership, digital colonialism का काउंटर है, autonomy enhancement है, सप्लाई चेन। बेसिकली कुल मिला के इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी ज्यादा इंटीग्रेट होगा अगर वो टेक डिप्लोमेसी करेगा तो।
और जो इमर्जिंग डायमेंशंस हैं, एआई हुआ, 6G हुआ, उनमें वो लीडरशिप रोल ले सकेगा। को प्रोडक्शन, मोरल स्टैंडर्ड सेटिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, चैलेंजेस वो आईपी के हैं, हार्डवेयर के हैं, डिजिटल प्रोटेक्शनिज्म के हैं, डुअल यूज डिलेमा के हैं, टेक डीकपलिंग के हैं, ह्यूमन कैपिटल ब्रेन ड्रेन के हैं कि भाई हमारे साइंटिस्ट वहां जाके काम करते हैं, साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं, स्टैंडर्डाइजेशन राइवलरीज, सबको टिक कर दो। जस्ट टेक अ लुक एट दीज कीवर्ड्स ओनली, आगे बढ़ना। डिफेंस डिप्लोमेसी, अरे भाई जितने आपने बायलैटरल रिलेशन पढ़े हैं, जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, सब मिला दो। डिफेंस डिप्लोमेसी वही है ना, यूएस के साथ, रशिया के साथ, यूरोप, अफ्रीका, आशियान, साउथ एशिया। मेजर इम्पेडिमेंट्स, ओवर डिपेंडेंस ऑन लिमिटेड पार्टनर्स, टेक ट्रांसफर, लैक ऑफ इंडस्ट्री डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, वही सब। साउथ साउथ कोऑपरेशन, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ से इंट्रोडक्शन करना है इसका। की पिलर्स ऑफ इंडियाज अप्रोच। Do we need to discuss this South South cooperation? So they have opened the dimensions and they've given you the substantiation. जब भी साउथ साउथ पे आए, अगर किसी क्वेश्चन में भी आप सब हेड बना रहे हो, यही डायमेंशंस खोल देना, यही कीवर्ड लिख देना और यही सब्सटेंशिएट कर देना एक एक लाइन में, सिंपल, अलग से कुछ रटना नहीं। ये सब पहले से पढ़ा हुआ है। कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट्स, आईटीईसी प्रोग्राम अफ्रीका लैटिन अमेरिका को देते हैं, इंडिया स्टैक, वैक्सीन मैत्री, सेम मेजर इम्पेडिमेंट्स वही, वे फॉरवर्ड, erosion of multilateralism, that we are moving away. उनका जो काम है वो ठीक से वो नहीं कर रहे हैं, so the multilateral structures are withering away. Key institutions, reasons behind the weakening, काम ठीक से नहीं होगा, institutional deficit है, democratic deficit है, enforcement deficit है. Just take a look at this. Opportunities for India as a third pole, leadership of the global south, strategic energy autonomy, accelerated trade deals, climate leadership, tech leadership, defense leadership, clean energy leadership, सब यहीं पर अपॉर्चुनिटीज बनती हैं इंडिया के लिए. Just go through this once. There's just 2 topics which we'll discuss now और उसके बाद it's a wrap. इंडियन वेस्ट एशिया जो हम देख रहे थे, इसमें जो इश्यूज आए थे, इसमें आपको अलग से पढ़ने की जगह यूएई, सऊदी, इजराइल और ईरान, ये जो रिलेशंस हैं, इनके पॉइंटर्स को अगर आप इसमें यूज करोगे, वेस्ट एशिया का आंसर बनेगा. ट्राई टू इंक्लूड अ मैप इफ पॉसिबल, सिर्फ वेस्ट एशिया का छोटा सा, नॉट अ प्लेस ऑफ डिस्प्ले ऑफ इंडियाज पावर, प्लेस ऑफ ऑगमेंटेशन ऑफ इंडियाज पावर. सिंपल इंट्रोडक्शंस, $3 बिलियन एलएनजी एग्रीमेंट यूएई के साथ, संकल्प 2.0, रुपी दिरहम ट्रेड, जीसीसी, आई टू फूड पार्क, फरजाद. अब ये सारे पॉइंटर्स आपको, अब ये वेस्ट एशिया में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. जैसे ये वाला जो मैप था, सिर्फ इतना सा आप डाल सकते हो, इसमें आपका आई मैक दिया जाएगा, सारा आ जाएगा, बट यू डोंट नीड टू रीड इट सेपरेटली, यू रीड इट एज अ पार्ट ऑफ इजराइल, ईरान, सऊदी एंड यूएई रिलेशंस. इंडिया ईरान मेजर जो इशू आ रहे थे, चाबहार वाला, एससीओ वाला, रेड सी क्राइसिस डिप्लोमेसी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, एनर्जी सिक्योरिटी, आईएनएसटीसी, यही इश्यूज हैं ईरान के साथ. मतलब सिग्निफिकेंस भी यही है, इश्यूज भी यही है. ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाइनीज इन्फ्लुएंस, अफगानिस्तान स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह, क्रिटिकल मिनरल एक्सेस. यू कंप्लीट, यहाँ पर आप इनके पॉइंटर्स ले लीजिए, मेजर इश्यूज जो वही है, वे फॉरवर्ड इसका है. इंडिया इजराइल में भी वही पॉइंटर्स बनते हैं. जो इसमें एक इंट्रोडक्शन एक अच्छा ये बनता है, दैट ITIT is Indian talent and Israeli tech leads to India Israel ties for tomorrow, I2T2. तो वो एक इंपॉर्टेंट अच्छा इंट्रोडक्शन यहाँ बन जाता है. अदरवाइज आप ये भी यूज कर सकते हो, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, डिफेंस, एग्री, काउंटर टेररिज्म, वाटर, इमर्जिंग टेक, मैरीटाइम एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन. बस यही टॉपिक्स हैं इजराइल में, सिंपल एज दैट. यही सिग्निफिकेंस है और यही फ्रिक्शन है. सिर्फ फ्रिक्शन एज एन चैलेंजेस है. फ्रिक्शन तो यहाँ पर वही है, पैलेस्तीन और डीहाइफिनेशन वाली जो पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग वगैरह वगैरह, जैसे डीहाइफिनेशन वाला था, और इसको इम्प्रूव करने के लिए वही है, डिफेंस से इनोवेशन की तरफ. अच्छा, इसमें जो ये वाले पॉइंटर्स थे, इसमें आप
एग्जाम्पल सब्सटेंशिएशन वाले यहीं से उठा लीजिएगा, ये वाला जो 8 पॉइंटर्स है, बस दीज आर इट, यही पॉइंट लिखोगे। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में फर्टिगेशन टेक्नोलॉजीज, काउंटर टेर में जीरो, टेररिज्म में जीरो टॉलरेंस, वाटर सिक्योरिटी में नेगेव, जल जीवन मिशन नमामि गंगे में, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एआई और सेमीकंडक्टर पे कोलैबोरेशन है, मैरीटाइम कनेक्टिविटी में आईमैक वगैरह है, अडानी ग्रुप, ये तो चलो खैर एग्जाम्पल ही बन जाएगा। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में ट्रेड $11 बिलियन पहुंचा है, उसको बढ़ाने की कोशिश है, बस यही आपका वे फॉरवर्ड बनेगा। एंड दीज आर अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, जिसमें आप सिर्फ पॉइंटर्स याद कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है साथ में है, हो सकता है अकेले है, दोनों ही सिचुएशन में, बस आप बस पॉइंटर्स इनकी याद कीजिएगा, विच आई विल प्रोवाइड यू। पहला तो ये वाला $100 बिलियन ट्रेड माइलस्टोन, बायलेटरल ट्रेड क्रॉस $103 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया आफ्टर EU, US, अफ्रीका। क्रिटिकल मिनरल्स वाले में ये वाला एंगल जरूर खुलेगा, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, ग्लोबल साउथ, क्रिटिकल मिनरल, इंडियन इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक मार्केट, फूड सिक्योरिटी, UNSC, कंपटीशन ऑफ चाइना, डायस्पोरा एंड कॉपरेशन एंड WTO। मतलब जितने भी 10 पॉइंटर्स जो टेम्पलेट हमने डिस्कस किया था उस सब में अफ्रीका फिट बैठता है, तो वील जस्ट हैव टू सब्सटेंशिएट विद दीज। इन द पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्वियसली चाइना आएगा, डिलीवरी नहीं होगी, trade heavily remains skewed towards raw Chinese dominance, coherent Africa policy नहीं है, strategic inertia है, implementation gaps है, वही pointers हैं, nothing new here. Maritime piracy is another concern है जो सोमालिया कोस्ट पे होती है, बस इंडियन प्रोडक्ट्स का परसेप्शन, वो टेंटेड सिरप गाम्बिया वाला इम्प्रूव करोगे, सेम पॉइंट्स। दिस सेंट्रल एशिया वी वोंट गो, इसमें तो वो रशिया का बैकयार्ड है, वही सब में कैंटर वाला थ्योरी है, वी डोंट नीड टू गो टू मच इनटू हियर। इसके भी सिर्फ वो पॉइंटर्स ही उठाइएगा, ऑफ दीज सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड, एनर्जी, तापी, यूरेनियम, काउंटर टेररिज्म, जो रैट्स वाला बनता है SCO, अफगानिस्तान और INSTC, बस क्रिटिकल मिनरल एंड सॉफ्ट पावर इफ यू वांट टू मेंशन इट, दैट्स इट। स्टेप्स टेकन में ये वही अफ्रीका वाला रिपीट होगा, सेंट्रल एशिया डेवलपमेंट ग्रुप, डायलॉग, टेक्निकल इकोनॉमिक ऑपरेशन जो अफ्रीका के साथ भी होता है, जॉइंट एक्सरसाइजेस, सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम, बस। पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन तो सब जगह सेम ही है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया, पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन सेम है, लैटिन अमेरिका में भी वही सेम है। ये बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टैंड अलोन विजिट बाय एन इंडियन PM टू अर्जेंटीना इन 57 years, फोकसिंग ऑन लिथियम एंड डिफेंस, तो इसलिए लैटिन अमेरिका इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्रिटिकल मिनरल वही सब कुछ सेम जो अफ्रीका और सेंट्रल एशिया के साथ है। एग्रीकल्चरल एंड डिफेंस मार्केट एंड स्टेप्स टेकन, DPI, वही जो आपने अफ्रीका के साथ किया वही आपने सब यहाँ पर किया है, यहाँ पे बस क्रिटिकल मिनरल्स पे ज्यादा फोकस है और वही चैलेंजेस है सेम। तो ट्राई टू, ये जो नॉकडेव वाला है ना, इसको आई वुड डिस्कस अलग से, जो आर्कटिक वाला हमने पढ़ा था उसके पॉइंटर्स आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, दैट वुड सफाइस। पैसिफिक आइलैंड भी हम इंडो पैसिफिक क्वाड में बहुत सारा पढ़ चुके हैं, तो यू डोंट रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स अलग अलग से, यू जस्ट ट्राई टू यूज दैट नॉलेज दैट यू हैव रेड इन डिफरेंट एंगल्स, उन्हीं को आप अलग अलग जगह पॉइंटर्स को यूज कर सकते हो और सेम टेम्पलेट यूज कर सकते हो, और यहाँ पर हम वापस वही मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पे आ जाएंगे। सो आई थिंक दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच IR। दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव PDF, यहाँ से आप कीवर्ड्स उठाइए, पॉइंटर्स उठाइए, और इंडिविजुअल बायलैटरल रिलेशंस अगर आपने अच्छे से कर लिए तो उनको ग्रुपिंग में यूज कीजिए, और अगर ग्रुपिंग अच्छे से कर लीजिए तो अच्छे से कर ली है तो बायलैटरल में उनको यूज कीजिए, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डू IR। 4 क्वेश्चन आने हैं, बी वेरी थॉरो विद इट, यही पॉइंटर्स, यही सब्सटेंशिएशन ऐड करोगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो बेस्ट विशेस, थैंक यू।